This is a one-stop solution for your preparation for 2026. आपको इसके बियॉन्ड कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ डिसाइड कराऊंगा आपको कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, आप उसकी टेंशन मत लो। I will be here to decide with you. We will work our hardest, our absolute hardest to ensure that you get the best quality, the best content with the most credible faculty. मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप इनको पढ़ लेना, you read them and you find any new point that is missing in this PDF. Once you start the course, I am sure that every single one of you will believe that you are doing the right process. I will be covering every mains previous year question with you. How can you be aware about UPSC? Today is the first session for our foundation batch for UPSC CSE 2026. My name is Dr. Shivan Chaudhary. A little bit about me. I've given 2 attempts in the UPSC CSE examination. My last attempt was in 2022, in which I got selected into the Indian Revenue Service. My All India rank was 297. After that, after being in the service for about a year, I quit the service and decided to come full-time into teaching. And I am one of the persons who will be handling the foundation course with you. I'm sure you are aware about the rest of our team as well. I'm sure you know about Mudit sir. He has also been selected 3 times in this examination. I'm sure you know about Varun sir. Other than that also, I'm sure you know about the rest of our team. So, what is the purpose of this session? आज का जो session है, इसका purpose ये है कि अब what we are going to do for our plan for the next 1.5 year. पूरा plan for prelims, for mains, for interview. When will our classes be? How are the classes structured? How are the tests structured? All of that, everything is what we will be doing today. आज हम ये सारी चीजें देखेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ाया जाएगा, किस फॉर्मेट में पढ़ाया जाएगा, क्या ऑर्डर रहेगा सब्जेक्ट्स का, कौन सब्जेक्ट, which faculty will be teaching which subject, and around that how you have to prepare, what your daily schedule should be like, how you have to make notes, how you have to practice active recall. All of that we will be discussing today. So that is what we will be discussing today. The entire roadmap for the next 1.5 years is what we will be discussing. Now, सबसे पहले बात करते हैं कि इस सेशन में आज हम डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं. What are the topics and what is the agenda for today's session? सबसे पहले यहाँ पे डिस्कशन होगी on what you can expect from this course, ताकि आपकी expectations बिल्कुल क्लियर रहें, आपको पता हो कि इस कोर्स में क्या होने वाला है. What is actually needed for the UPSC CSE exam that we are going to discuss. How you can use this course most effectively. Our planning for the next 1.5 years. Our daily plan and targets. एक देखो हमारा broad plan होगा of 1.5 years कि 1.5 साल में हमें क्या करना है. फिर हमें डेली के बेसिस पे कैसे ऑपरेट करना है. That also we are going to discuss. This discussion about optional subject. I'm sure आप लोगों के कईयों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, करना भी है अभी या नहीं करना, एक्सेट्रा. Then questions about note making. This question is there. Then active recall. तो ये सारे टॉपिक्स मैं आपके साथ आज डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं. इन माय ओपिनियन, आफ्टर आई हैव टॉक्ड अबाउट व्हाटएवर आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे, आपके दिमाग में कोई डाउट बचेगा नहीं. तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस इन दिस कोर्स. देखो, सबसे पहले तो यू हैव मेड द डिसीजन टू कम हियर एंड आई एम इमेंसली ग्रेटफुल दैट यू हैव शोन ट्रस्ट इन अस. नाउ the fact that you have shown trust in us, it is our responsibility, it is incumbent upon us that we also deliver on the trust that you have shown us. Today I am just going to tell you the ability that we have to deliver on this trust. Our team, the team that we have here at Sarthi IAS, this is the only team in the market that has the combined experience of 4 selections and 10 interviews. And now Sajal sir has also joined our team, so this number has become 4 selections and 13 interviews. The people who are teaching you, the people who are going to be guiding you for the next 1.5 years, this is the experience we carry. We are here people who have been we have a combined experience of 4 selections and 13 interviews. तो हमने ये रूल बनाया इस कोर्स में that anyone who speaks to you, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, ऐसे आपके मेंटर्स भी आपसे बात करेंगे, ऐसे आपके टीचर्स भी आपसे बात करेंगे. We have made this rule in this course that nobody who speaks to you will be anyone who has not given interview to this examination. मतलब आपसे जो भी बात करेगा
उसने मिनिमम सिविल सर्विसेज एग्जाम का इंटरव्यू दिया हुआ होगा, would have minimum given an interview to the civil services exam or would have been selected in this exam. That is the only people who will speak to you. Since you have shown your trust in us, we will also repay that trust many fold. आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे इसके बाद कबल सर आपसे बात करेंगे. जो भी आपको पढ़ाएगा या जो भी आपकी मेंटरशिप करेगा, they have at least given interview in this examination. That is our first commitment to you. ताकि आपको क्रेडिबिलिटी पे कभी कोई डाउट ना हो. You are always sure that it is only credible people who are teaching you. Now, किसी भी फाउंडेशन कोर्स में या किसी भी कोर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो कंटेंट होती है. The content has to be good. अभी तो ये बात है that people are good, but people से आपको क्या करना, right? Ultimately तो content matters. जो आप पढ़ोगे, the content that comes to you, the lectures that come to you, the notes that come to you, they have to be good. Our responsibility does not end with good content. हमने ये सोचा है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गुड कंटेंट तो है ही, बट दिस इज वेयर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट्स. सो दिस कोर्स विल हैव गुड कंटेंट. Along with that, it will have live lectures, quality content, discussion of previous year questions, practice of MCQs, mentorship, answer writing, personal hand-holding, even personality development. This is a one-stop solution for your preparation for 2026. आपको इसके beyond कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बनाता हूं. मैंने भी एक फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया था जब मैं when I was starting my preparation in 2019. I had joined a foundation course. It is a very big coaching. इसका मैंने foundation course join किया. Fees was in lakhs of rupees. And even then, after completing my foundation course, a lot of things about the mains examination and a lot of things about the prelims examination I was not aware about. मुझे पता भी नहीं था कि मेंस की तैयारी करनी कैसे होती है. Rather than coming to the point of कि एक्चुअली तैयारी करना तो बहुत दूर की बात है, मुझे ये भी नहीं पता था कि तैयारी करनी कैसे होती है. बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी द केस विद यू टुडे. इन दिस कोर्स वी विल एंश्योर दैट एवरी स्टेप ऑफ द एग्जामिनेशन यू आर क्लियर अबाउट हाउ टू प्रिपेयर एंड यू हैव द बेस्ट कंटेंट विद यू. नाउ आपने भी सुना होगा ये दैट इन ऑलमोस्ट एवरी फाउंडेशन कोर्स दैट इज देयर इन द मार्केट, प्रीलिम्स की तैयारी ठीक ठाक सी हो जाती है. द बेसिक फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स आर कवर्ड एट सम बेसिक लेवल. Problem mainly mains में आती है. So we have decided, and since Saarthi IAS is the leader in the mains market, we have decided that mains maybe we will give you the same quality, and you will never feel that neither in prelims, neither in mains will you feel that you are short on anything. हमने इस साल जो mains का कोर्स किया called MMP Plus. From this course and from our other mains courses, 600 students of Saarthi IAS are actually giving this civil services interview this year. जो इस साल के इंटरव्यूज जो परसों से शुरू हो रहे हैं, from 7 January they are starting. 600 students of Saarthi IAS are giving the interview, and these are our main students. हम इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम वालों को इसमें काउंट नहीं कर रहे. अगर आप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम वालों को भी काउंट कर लो तो दिस नंबर इज 1000. टोटल नंबर ऑफ पीपल गिविंग द इंटरव्यू इज 3000, and out of this you can see the ratio. So this is the quality that you will be getting. Right now, we will work our hardest, our absolute hardest, to ensure that you get the best quality, the best content with the most credible faculty. And we hope that you will also work with us and deliver the best possible outcome in UPSC CSE 2026. अभी जब मैं आपको पूरे इस कोर्स का प्लान दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या हम करने वाले हैं. You will realize that everything from prelims to mains to answer writing is covered here. कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपकी छूटेगी. So please don't go for any other solution than this. आप यहां आए हो, आपने हमें ट्रस्ट किया है, अब कंटिन्यू दैट ट्रस्ट. इसके अलावा आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. दिस इज माई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉमिस टू यू. राइट नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स डिस्कस एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू डू हियर. देखो, एक चीज होती है गुड कंटेंट. आई कैन टीच यू वेल. दिस इज वन थिंग दैट आई टीच यू वेल, बट इज दैट इनफ? इज इट पॉसिबल? क्या आप बताओ, आप मुझे बता सकते हो इस बारे में. डू यू थिंक इट इज पॉसिबल फॉर एनीवन टू से कि मैं ये कुछ कंटेंट पढ़ा दूंगा और यूपीएससी के सारे क्वेश्चंस इसी कंटेंट से आएंगे? क्या ये इस टाइप का एग्जाम है इन योर ओपिनियन? डू यू थिंक दिस इज दैट सॉर्ट ऑफ एग्जाम जहां पर मैंने आपको कहा कि ये कंटेंट मैंने पढ़ा दिया
और आप इसको रट के चले जाओ और सारे क्वेश्चंस इससे आ जाएंगे, अब आप बस इस नॉलेज को रिप्रोड्यूस कर देना, राइट? आई कैन से विद experience of my experience of clearing this exam and the experience of millions of people that are preparing for this exam, I think all of them would agree, as you are also agreeing, that this is not that exam. ये एग्जाम वैसा है ही नहीं कि सिर्फ कंटेंट से बात बन जाए. कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटेंट इंपॉर्टेंट है, बट कंटेंट के अलावा भी बहुत चीजें हैं, राइट? वी हैव टू लर्न द नेसेसरी स्किल्स टू बी अ गुड स्टूडेंट. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी नहीं है कि मैं आपको एक अच्छा कंटेंट पढ़ाकर कुछ नोट्स देकर कहूं कि बस हो गया. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? दैट यू एक्चुअली लर्न दी स्किल्स. कि मान लीजिए आपको कोई और चीज भी पढ़नी हो, लेट्स से यू हैव टू लर्न समथिंग डिफरेंट, आपको कोई और टेक्स्ट बुक पढ़नी हो, आपको कोई और नोट्स पढ़ने हो, तो भी आपके पास वो स्किल्स हो कि आप उस पर बेस्ट इंफॉर्मेशन अब्सॉर्ब कर सको. दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. So my responsibility is not just good content. Of course, good content is my responsibility. It is also to give you the necessary skills to become a good student in the future. कि आप कुछ भी पढ़ो, you absorb the most information in the most relevant and effective manner. That is what we have to achieve here. I think you will all agree, right? मेरी एक और responsibility है. ये यूपीएससी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. जो नीट का एग्जाम होता है, मैंने नीट का एग्जाम भी निकाला है. आई एम एक्चुअली अ डॉक्टर फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज. माय नीट रैंक, नीट जो यूजी का एग्जाम होता है फॉर एमबीबीएस, आई गिव दैट एग्जाम इन 2015 एंड माय ऑल इंडिया रैंक वाज 70 इन नीट 2015. उस टाइम पे इसको एआईपीएमटी कहते थे, नाउ इट्स कॉल्ड द नीट. नाउ ये जो एग्जाम होता है, इस एग्जाम में ना ज्यादा मिसगाइडेंस नहीं है. यहां पर क्या है कि सबको पता है क्या करना है. इट्स मेनली अबाउट योर एबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूशन. यूपीएससी में ऐसा नहीं है. यूपीएससी में मिसगाइडेंस बहुत ज्यादा है. एंड आप मुझे बताना इफ यू हैव फेल्ड दिस और नॉट. यूपीएससी का जो एग्जाम है, चाहे किसी ने उसका इंटरव्यू दिया हो, चाहे किसी ने उसको क्लियर किया हो ना किया हो, ऐसा भी कोई होगा आपके आसपास जिसका आज तक प्रीलिम्स भी नहीं हुआ होगा. इन मेनी अटेम्प्ट्स, 5-6 अटेम्प्ट्स हो गए होंगे एंड प्रोबेबली हैज नॉट इवन क्लियर्ड प्रीलिम्स, बट इवन दे विल गिव यू एडवाइस. वो भी आपको एडवाइस देंगे और बिल्कुल प्रॉपरली एडवाइस देंगे, एज इफ दे आर अवेयर अबाउट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन दिस एग्जाम. बताओ ऐसा होता है या नहीं होता है? इज दिस हैपनिंग इन दिस एग्जामिनेशन और नॉट हैपनिंग? कि आपको लगता है आपको कोई एडवाइस देगा, बहुत ही प्रॉपरली एडवाइस देगा, बहुत ही सोच के एडवाइस देगा, आपको लगेगा कि दे आर गिविंग द बेस्ट ओपिनियन पॉसिबल, लेकिन अगर आप उनकी हिस्ट्री पूछो तो इट इज पॉसिबल दैट दे हैव नॉट इवन अपीयर्ड इन द मेंस एग्जाम, और आपको वो इंटरव्यू गाइडेंस की टिप्स देने लगेंगे, राइट? दिस वी हैव टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट. तो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? अगेन, लाइक आई टोल्ड यू, एनी मेंटर हु स्पीक्स टू यू, any teacher who speaks to you has minimum given interview to this exam. This is our guarantee to you. है ना? पहली बात तो ये है. And then we are all sitting together. हम आपस में भी बहुत बात करते हैं. We all sit together in the Saarthi IAS office and हमारी philosophy सबकी same है. So the advice that you get will broadly be the same. That is the other idea. Right? यहां पर दो लोग हैं, मुदित sir and me, who have actually been selected in this exam also. So you don't have to worry about the advice that you get. This is our way of hedging you against misguidance, कि आपको ये misguidance ना मिले. अब आप कैसे बचोगे? ये तो हम कर सकते हैं आपके लिए. आपको भी बचना है misguidance से. How will you get saved from misguidance? You will get saved from misguidance with a simple formula. Don't speak to anyone who has not given interview. आप बात ही मत करो किसी से अबाउट द एग्जाम जिसने इंटरव्यू नहीं दिया. डोंट स्पीक टू एनीवन का मतलब ये नहीं है कि आप दोस्त मत बनाओ. ऑफ कोर्स यू मेक फ्रेंड्स, यू टॉक टू पीपल अराउंड यू. सोशल लाइफ इज इंपॉर्टेंट, आपको कट ऑफ नहीं होना है. आप एडवाइस मत लो किसी से जिसने इंटरव्यू नहीं दिया. दिस मेक दिस अ जनरल रूल. आप एडवाइस ही मत लो किसी से जिसने इंटरव्यू नहीं दिया है, राइट? और इवन इफ यू टेक दैट एडवाइस, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, राइट? क्योंकि देखो, इट इज, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने अगर इंटरव्यू नहीं दिया तो दे कांट गिव यू गुड एडवाइस. ऑफ कोर्स दे कैन. हो सकता है वो मेरे से भी बहुत अच्छी एडवाइस आपको दे दे, राइट? हो सकता है कि वो आपको बेस्ट एडवाइस भी दे सके, राइट? बट लाइक्लीहुड की बात करते हैं.
हमें तो नहीं पता एडवाइस लेने से पहले वो अच्छी एडवाइस है या नहीं. इज दिस अ रिस्क दैट यू आर विलिंग टू टेक? मेरे हिसाब से दिस शुड नॉट बी अ रिस्क यू आर विलिंग टू टेक. ये रिस्क हमें नहीं लेना चाहिए. हो सकता है वो एडवाइस एकदम रेवोल्यूशनरी हो, बट रिस्क है ना. अगर कोई सिलेक्टेड बंदा आपको एडवाइस दे रहा है, द चांसेस ऑफ दैट एडवाइस बीइंग गुड आर मच बेटर. ऐसे लोग आपको अगले 1.5 साल में बहुत मिलेंगे. आपके लाइब्रेरी में कोई भैया मिल जाएंगे, यूट्यूब पे ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे. प्लीज डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम पीपल हु हैव नॉट गिवन इंटरव्यू. लेनी ही नहीं है उनसे एडवाइस, क्योंकि ये रिस्क हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना यार. इट इज स्टिल पॉसिबल दैट एडवाइस वुड बी गुड, नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, बट आप खुद बताओ, कैन यू टेक दिस रिस्क? वी कैन नॉट. मेरे हिसाब से आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए. ये जो आपके ईयर्स हैं, द ईयर्स ऑफ योर लाइफ दैट यू आर इन राइट नाउ, इससे क्रूशियल लाइफ में कुछ नहीं होता. एंड आई नो, बिकॉज आई हैव गॉटन द बेनिफिट ऑफ इट. मैंने अपने 20s सैक्रिफाइस किए हैं सो दैट आई कुड गेट सिलेक्टेड, बट दैट केम एट अ कॉस्ट. That came at the cost of personal relationships, that came of the cost that I could give to my family, that came at the cost of the fun that I could have in life. Right? तो ये बहुत बड़ी कॉस्ट है टाइम की. मनी जो आपने इन्वेस्ट किया उसको हटा देते हैं, टाइम जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. इट विल नेवर कम बैक. यू विल नेवर बी इन योर यूथ अगेन. यू विल नेवर बी इन योर 20s अगेन. So if you are willing to invest your time to this examination, we will minimize all our other risks. We will ensure that we are having the best possible approach forward. I hope you are understanding this and you agree with this. कि आप किसी भी नॉन इंटरव्यू पर्सन से एडवाइस मत लीजिए unless they are somebody who has direct incentive in your selection. जैसे कि आपके पेरेंट्स हो सकता है उन्होंने इंटरव्यू ना दिया हो, बट they will always give you the best advice. Always. यूपीएससी रिलेटेड एडवाइस आप मत लीजिए किसी से जिसने इंटरव्यू ना दिया हो. नाउ पहले बात करते हैं व्हाट इज नीडेड इन दिस एग्जाम, फिर हम बात करेंगे ऑफ व्हाट वी विल डू टुगेदर इन दिस कोर्स. है ना, ये दो चीजें देखते हैं, व्हाट इज नीडेड फॉर दिस एग्जाम एंड व्हाट वी विल डू टुगेदर. अभी यूपीएससी का कैलेंडर फॉर 2026 आया नहीं है, बट गोइंग ऑफ द 2025 कैलेंडर, हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम होगा मई में, मेंस का एग्जाम होगा अगस्त में, और इंटरव्यू स्टार्ट होंगे इस साल. जो इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं 7 जनवरी से हो रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि जनवरी में हमारे इंटरव्यू स्टार्ट होंगे. ब्रॉडली यही हमारा शेड्यूल रहना चाहिए. राइट नाउ अब इन कंपोनेंट्स को समझाते हैं. पहले तो आप लोग मुझे बताओ, मैंने एक और स्ट्रैटेजी सेशन लिया था फॉर 2026. इट्स ऑन यूट्यूब ऑल्सो. सारथी आईएएस के यूट्यूब पे पूरा डिटेल में एक स्ट्रैटेजी सेशन है ऑन व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस एग्जाम, क्या हमें करना होता है. या आपने वैसे भी, आई एम श्योर बाय योरसेल्फ आल्सो यू वुड हैव डन दिस रिसर्च. हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ दिस एग्जाम? यार देखो, अगर यू आर नॉट अवेयर, इफ यू आर नॉट अवेयर, डोंट वरी. ठीक है, यू डोंट नीड टू वरी. ऑफ कोर्स आई विल टेल यू एवरीथिंग, है ना. बट एक बात देखते हैं, एक चीज है जो हमने आज के बाद कभी नहीं करनी. आज तो हो गया, आज के बाद नहीं करेंगे हम कभी. हमने डिसाइड किया हमने एग्जाम देना है. आप सबने डिसाइड किया आपने एग्जाम देना है. आपने डिसाइड किया कि आप एक कोर्स लोगे उस एग्जाम के लिए, आपने वो भी डिसाइड किया, आपने कोर्स भी लिया. यू हैव टेकन 2 डिसीजंस. फर्स्ट डिसीजन यू सेड आई विल प्रिपेयर फॉर यूपीएससी. दिस इज द फर्स्ट डिसीजन. सेकंड डिसीजन क्या लिया आपने, विच आई नो ऑफ, ये डिसीजन तो मेरे सामने है. आई विल एनरोल इन सारथी आईएएस. ये डिसीजन भी आपने लिया. अब आप मुझे बताओ, इस बीच में एक चीज और नहीं होनी चाहिए थी यार. शुड देयर नॉट हैव बीन वन मोर डिसीजन हियर ऑफ एक्चुअली नोइंग द एग्जाम फुली, कि ये एग्जाम है क्या. आइडली तो हमें जानना चाहिए था ना यार. चलो अब लेट्स से वी डोंट नो, वी आर नॉट अवेयर, इट्स ओके. अंडरस्टैंड कि हमें आगे भी यही अप्रोच रखनी है. अब हम जैसे डिसीजन लेंगे कि हमें अपना ऑप्शनल लेना है, अवेयरनेस अबाउट व्हाट डिसीजन वी आर गोइंग टू मेक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जब मैंने डिसाइड किया आई वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, द नेक्स्ट स्टेप शुड हैव बीन कि मैं एग्जाम को पूरी तरह जानूं. नहीं, आप सॉरी मत बोलो रवि, सॉरी की बात नहीं है. या आप ऐसे, और हाउ एल्स विल यू लर्न. मेरा काम मैं आपको तभी कह रहा था, माय जॉब इज नॉट ओनली टू टीच यू कंटेंट. मैं यहाँ पे आपको इकोनॉमी या साइंस एंड टेक पढ़ाने का काम नहीं है मेरा. मेरे को आपको सोचना भी सिखाना है, बिकॉज वो स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है. हाउ टू थिंक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. वहां पर हो सकता है कोई अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आ जाए, कोई ऐसी चीज आ जाए जो आपने डायरेक्टली ना पढ़ रखी हो, बट इफ योर अप्रोच इज गुड यू विल स्कोर वेल.
है ना। तो आइडियली जब मैंने ये डिसीजन लिया कि यार आई शुड प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, द नेक्स्ट जॉब शुड हैव बीन दिस, कि ये एग्जाम है क्या, इस एग्जाम में पूछा क्या जाता है, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ दिस एग्जाम, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ दिस एग्जाम, व्हाट आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ दिस एग्जाम। एंड ये जो काम है, दिस अवेयरनेस, ये मैं आपको बता रहा हूं, लोग एंड तक फुली अवेयर नहीं हो पाते, एंड व्हेन दे आर नॉट फुली अवेयर अबाउट दिस टिल द एंड, तब उनके सिलेक्शन के चांसेस हाफ से भी कम रह जाते हैं। हाउ कैन यू बी अवेयर अबाउट यूपीएससी? आप इस एग्जाम के बारे में अवेयर कैसे हो सकते हो, इसकी बात करते हैं। आप बताओ, हाउ कैन आई हैव दिस अवेयरनेस? कहां से मिलेगी ये अवेयरनेस? मुझे उन चीजों से मिलेगी जो यूपीएससी ने खुद लिखी हैं, द थिंग्स दैट यूपीएससी हैज रिटन इटसेल्फ। और ऐसी हमारे पास केवल दो ही चीजें हैं, एक है यूपीएससी का सिलेबस और ऑफिशियल नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में ही सिलेबस होता है, सिलेबस और ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एक ये चीज है, और एक है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इन द नेक्स्ट 1.5 years, in the next 1.5 years when you are going to give your attempt, these two are your best friends. इनको कभी मत भूलना। आज से ये this is the probably the most important message you can take from today's session, that these two people are your best friends from today. Best, इनसे ज्यादा हेल्प आपकी कोई नहीं करेगा, ठीक है। नाउ लेट मी शो यू समथिंग। जिन्होंने वो सेशन नहीं देखा है, मैं आज आपको जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो सेशन देखो। लेट मी जस्ट गो टू यूट्यूब और मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूं मैं किस सेशन की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग ऑफ दिस सेशन, ठीक है। प्लीज वॉच दिस कंप्लीटली, ठीक है। इस सेशन में मैंने क्या बताया है, ये मैंने ही सेशन लिया है, ऑल्दो आई विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स टुडे ऑल्सो, बट देखो रेपिटेशन ऑफ वर्क, मैं ये चीजें यूट्यूब पे हैं, राइट। आई एम श्योर बहुत लोगों ने देख भी रखा होगा, 1.2 लाख व्यूज भी हैं इस पे, तो काफी लोगों ने देख रखा है, राइट। आई विल टेल यू इन ब्रीफ everything that is in this session, I will tell you in brief, but I still want कि आप ये डिटेल में देखो। ये यही सेशन है और इसमें देखो, इसमें यही डिस्कशन है, रियलिटी ऑफ यूपीएससी सीएससी, फॉर्मेट, ब्रॉड प्रिंसिपल, प्लानिंग, पूरा डिस्कशन यहाँ पे रियलिटीज के ऊपर, ब्रॉड प्रिंसिपल्स, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। ये मैं चाहता हूं आप देखो, मैंने ही लिया है ये, इसमें सारे एग्जाम के बारे में, प्रीलिम सेशन के बारे में, इंटरव्यू में क्या होता है, मेंस में क्या होता है, माय एक्सपीरियंस ऑफ द इंटरव्यू, हाउ टू प्लान, आइडियल डे कैसा है, एनसीईआरटीज पढ़नी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, सब्जेक्ट्स को लेके अप्रोच क्या है, ऑप्शनल को लेके अप्रोच क्या है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन अ लॉट ऑफ डिटेल, राइट। You can see the name of this session, Complete UPSC 2026 Preparation Strategy by Dr. Shivan Chaudhary. आप प्लीज इसको देखना। आफ्टर दिस सेशन, दिस इज योर टुडेज वर्क। अगर आपने देखा भी है, इवन इफ यू हैव वॉच्ड, आई वुड रिक्वेस्ट यू वॉच अगेन, बिकॉज ये प्रिंसिपल्स हम भूल जाते हैं। मेक सम नोट्स फ्रॉम दिस, टेक वन A4 शीट, एक A4 शीट लीजिए और उस A4 शीट पे, ऑन दिस A4 शीट, write all the important messages or all the important principles that you gain from that video. And जब मैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन लूंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या क्या लिखा। सो प्लीज वॉच दिस, ये आपका आज का काम है आफ्टर टुडे सेशन। अगर देखा है तो भी यू वॉच दिस अगेन। सी, बिकॉज आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। मैं आपको थोड़ी अपनी हिस्ट्री बताता हूं। मैंने 2019 में स्टार्ट किया था। मैं उस टाइम पे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में अपने फाइनल ईयर में था। फिर 2020 में मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं कर पाया बिकॉज कोविड स्ट्रक, एंड ड्यूरिंग कोविड आई डिड अ कोविड इंटर्नशिप। पूरे साल मैंने कोविड हॉस्पिटल में काम किया है, पूरे दिन वो पीपीई किट डाल के 12-12 घंटे की ड्यूटीज की हैं कोविड में। तो आई वाज नॉट एबल टू स्टडी दैट मच इन 2020। देन आई ग्रेजुएटेड इन 2021। दिस इज व्हेन आई गेव माय फर्स्ट अटेम्प्ट। इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई क्लियर्ड द प्रीलिम्स, बट आई कुड नॉट क्लियर द मेंस. Then in 2022, I gave my second attempt. In this, I cleared the prelims, cleared the mains, cleared the interview, and finally got All India rank of 297.
तो ये जितना भी एक्सपीरियंस दैट आई हैव गेन्ड फ्रॉम दिस प्रोसेस, वो सारा रियलिटीज ऑफ यूपीएससी और क्या एक्चुअली होता है जब डिस्ट्रैक्शन आ जाती है हमारी लाइफ में, तब कैसे पढ़ाई करनी होती है, जो भी एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है और जो यहां पर मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, इसके बाद व्हेन आई वेंट टू लबासना, वहां पर भी जो चीजें मैंने सीखी हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दैट हैज बीन टॉक्ड अबाउट इन दैट सेशन। तो मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो सेशन देखो। नाउ coming back to what we were discussing, let's now see the various components of this exam. Although I am sure आपको इस बारे में पता होगा, but still I will give a small broad overview. ठीक है, prelims exam जो है हमारा, इसमें क्या है, there are two parts, general studies and CSAT. दोनों में 100 MCQs आएंगे, 80 MCQs here. Let's first talk about the syllabus for general studies. General studies में क्या हमारा syllabus है उसकी बात करते हैं. Current affairs, current events of national and international importance, history of India and Indian national movement, Indian and world geography, Indian polity and governance, economic and social development, general issues of environment and ecology, general science. ये हमारा syllabus है for the प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जनरल स्टडीज जो पेपर 1 है. सेकंड पार्ट है सीसैट. सीसैट का सिलेबस देख लेते हैं कि सीसैट का सिलेबस क्या है. लेट्स जस्ट सी द सीसैट सिलेबस. सीसैट का सिलेबस है कॉम्प्रिहेंशन, सॉरी अबाउट दिस, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, मेंटल एबिलिटी, न्यूमरेसी. The way it is written might be a bit confusing. The actual syllabus of CSAT is threefold: logical reasoning, reading comprehension, quantitative aptitude. Basically maths, English and logical reasoning. ये हमारा syllabus रहता है. यहाँ पर लिखा है that it is class 10th level. कहीं से भी CSAT अब class 10th level का नहीं रह गया. It is much beyond class 10th level now. कहीं से भी class 10th level का नहीं होता CSAT. ठीक है, ये लिखा है बट इट्स नॉट एक्चुअली क्लास 10th लेवल व्हाटसोएवर. कहीं से भी क्लास 10th लेवल का नहीं है. ठीक है, अब प्रीलिम्स एग्जाम को पहले समझते हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम में हमें क्या क्या करना है. प्रीलिम्स एग्जाम में जनरल स्टडीज में जो हमारा एक्चुअल पेपर है, विच ऑफ दीज टू पेपर्स इज क्वालिफाइंग, ये बात आप बताओ. इज द जीएस पेपर क्वालिफाइंग और इज द सीसैट पेपर क्वालिफाइंग? किसमें आपके मार्क्स मैटर करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. और टोटल मार्क्स क्या होते हैं, आप अगर अवेयर हो तो आप मुझे बताओ. यू टेल मी, कौन सा क्वालिफाइंग है इसमें से? गुड, सीसैट इज क्वालिफाइंग पेपर. और कितने मार्क्स चाहिए मुझे सीसैट में? जनरल स्टडीज का जो पेपर है, इट इज 200 मार्क्स. हाउ आर दीज 200 मार्क्स डिटरमिन्ड? 100 क्वेश्चंस इनटू 2 marks each. For a wrong answer, there is minus 1/3 negative marking. So 1/3 of 2. So 0.66 negative marking. CSAT is also the same, 200 marks. But the difference here is 80 questions of 2.5 marks each. If you get one question wrong, you will also get negative marking of 1/3 into 2.5. In general studies, whatever marks you get, एक कट ऑफ नंबर होगा. कट ऑफ के ऊपर आपको स्कोर करना है, तो जितने ज्यादा आप स्कोर करो उतना अच्छा. यहां पर आपके मार्क्स मैटर करते हैं. दिस इज नॉट मियरली क्वालिफाइंग, हियर यू हैव टू गेट मार्क्स. सीसैट में you have to just pass a pre-determined figure of 66 marks, 33% marks. 33% मार्क्स आपको ऑब्टेन करने हैं यहां पर. 33% अगर आपके आ गए तो आप चाहे 34% आए या 80% आए, बात बराबर है. यहां बात बराबर नहीं है. यहां एक कट ऑफ डिसाइड होगा. कट ऑफ के ऊपर आपके मार्क्स आने चाहिए, तब बात बनेगी. हाउ इज दिस कट ऑफ डिसाइडेड? किसी को यह पता है कि कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है? अगर आप अवेयर हो तो ये भी बताओ मुझे कि ये कट ऑफ, हाउ इज दिस कट ऑफ डिसाइडेड?
दिस इज टफ क्वेश्चन, ये कोई बताएगा तो मेरी तरफ से इनाम है कि ये कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है। ये आपको पता होगा कि प्रीलिम्स का एक कट ऑफ होता है, एटलीस्ट दिस मच यू मस्ट बी नोइंग अबाउट कि प्रीलिम्स का कट ऑफ होता है, इतना तो पता है ना कि जीएस में एक कट ऑफ होता है। ये कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं। आपने कहा कट ऑफ इज समबडी सेड मार्क ऑफ लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट, हाउ विल बी डिसाइडेड, हाउ विल दैट बी डिसाइडेड कि लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट कौन सा है। देखो दिस इज व्हेन व्हाट आई से वी शुड नो द डेविल दैट इज फेसिंग अस। हमें पता होना चाहिए कि उस टाइम उस साल या हमारे सामने जो पेपर है वो कैसा है। ऑलमोस्ट जो आप आंसर दे रहे हो दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर, इट इज नॉट बेस्ड ऑन डिफिकल्टी, इट इज नॉट बेस्ड ऑन लेवल ऑफ पेपर, बिल्कुल इस पे डिसाइडेड नहीं है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पे भी डिसाइडेड नहीं है। हमें पता होना चाहिए हम क्या फेस कर रहे हैं। इसी को मैं आपको कह रहा हूं अवेयरनेस बेस्ड थिंकिंग लाओ, समझो क्या हो रहा है। नाउ लेट मी, चलो अब रुक जाओ, अब मैं बताता हूं। नाउ लेट मी टेल यू कि किस तरह से ये कट ऑफ डिसाइड होता है। इवन दीज थिंग्स मोस्ट पीपल डोंट नो, अब मैं बताता हूं, ठीक है। यूपीएससी का काम क्या है, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस। यूपीएससी डज नॉट मेक यू आईएएस। यूपीएससी का काम, आप रुक जाओ प्लीज, अब मैं बता रहा हूं। यूपीएससी का काम आपको आईएएस आईपीएस बनाना नहीं है। यूपीएससी इज एन इंडिपेंडेंट कमीशन। एक है हमारी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डीओपीटी ने यूपीएससी को एक काम दिया है, प्लीज रेकमेंड द बेस्ट कैंडिडेट्स फॉर सिविल सर्विसेज, प्लीज रेकमेंड द बेस्ट कैंडिडेट्स फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, फॉर सिविल सर्विसेज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिविल सर्विसेज के लिए बेस्ट कैंडिडेट्स को प्लीज रेकमेंड कीजिए। यूपीएससी कहता है ओके, आवर जॉब इज ओनली टू रेकमेंड। अगर आपने आज तक किसी की सिलेक्टेड मार्कशीट देखी है, नेक्स्ट सेशन में आई विल शो यू माय मार्कशीट, मेरी मार्कशीट में भी फाइनली यहां पर क्या लिखा है, रेकमेंडेड, ये लिखा होता है बस। सर्विस यूपीएससी की मार्कशीट में नहीं लिखी होती, सर्विस बाद में पता चलती है, सर्विस यहां से आती है। यूपीएससी सिंपली रेकमेंड्स सर्टेन पीपल saying that these are the best people for civil services to enter civil services in India in a rank wise order. Then DOPT gives service allocation. यूपीएससी का काम आपको आईएएस आईपीएस बनाना है ही नहीं, मियरली आपको रेकमेंड करना है। तो जब डीओपीटी यूपीएससी को कहता है प्लीज रेकमेंड सर्टेन पीपल फॉर सिविल सर्विसेज हु आर बेस्ट सूटेड टू एंटर द सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया, तो यूपीएससी क्या कहता है, यूपीएससी आस्क्स डीओपीटी हाउ मेनी पीपल शैल बी रेकमेंड, कितने लोग हम रेकमेंड करें। वी कैन रेकमेंड 10,000 पीपल ऑल्सो, आप बताओ कितने लोग रेकमेंड करें। देन डीओपीटी सेज ओके लेट अस लुक एट द वैकेंसीज अवेलेबल इन वेरियस सर्विसेज। अल्टीमेटली तो हमें सर्विसेज एलोकेट करनी है, तो डीओपीटी विल गिव यू अ वैकेंसी एलोकेशन दैट इस साल हमें आईएएस में चाहिए 180 पीपल, आईपीएस में चाहिए 200 पीपल, आईआरएस में चाहिए 150 पीपल, आईएफएस में चाहिए 30 पीपल। ऐसा यूपीएससी को डीओपीटी पहले देखता है कि मेरे को किस सर्विस में कितने लोग चाहिए, देन दैट रिकमेंडेशन इज गिवन। नाउ यूपीएससी नोज दैट ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस सर्विसेज, वेरियस वैकेंसीज, हाउ मेनी पीपल आर नीडेड, 1000 पीपल आर नीडेड। अब ब्रॉड हर साल ये नंबर चेंज होता है। डीओपीटी मींस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। पर्सनल मतलब लोग और ट्रेनिंग तो आपको पता ही है। तो डीओपीटी ने यूपीएससी को बोला कि आप 1000 लोगों को रेकमेंड करो। हर साल दिस नंबर चेंजेस, ये आपने सुना होगा कि इस साल कितनी वैकेंसी आई, उस साल कितनी वैकेंसी आई, दिस नंबर कीप्स चेंजिंग एवरी ईयर। तो ये नंबर हो गया 1000। अब अगर यूपीएससी को काम क्या है, यूपीएससी का 1000 लोगों को रेकमेंड करना है, दैट इज यूपीएससी जॉब। अब यूपीएससी आगे क्या करता है वो देखते हैं। दिस इज हाउ कट ऑफ इज डिसाइडेड। यूपीएससी सेज वी हैव टू रेकमेंड 1000 पीपल, तो हम इंटरव्यू के लिए, फॉर द इंटरव्यू वी विल कॉल 3 times दिस नंबर, अप्रोक्सीमेटली 3 times, इट्स नॉट कंप्लीटली 3 times, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं प्रोसेस को आपको समझाने के लिए कि 3 times दिस नंबर नीड्स टू बी देयर।
तो यूपीएससी कहता है इंटरव्यू के लिए हम बुलाएंगे 3000 लोग। ये पहले यूपीएससी डिसाइड करता है कि इंटरव्यू के लिए कितने लोग आएंगे, तो 3 times दिस नंबर विल कम एंड गिव द इंटरव्यू। ठीक है, अब इंटरव्यू से पहले भी एक प्रोसेस है मेंस, उससे पहले एक प्रोसेस है प्रीलिम्स। अब यूपीएससी कहता है हमें 3000 लोग इंटरव्यू के लिए चाहिए, तो कितने लोग मैं बुलाऊं फॉर मेंस। नाउ लेट मी थिंक हाउ मच पीपल शुड आई कॉल फॉर मेंस। तो जनरली यूपीएससी डिसाइड करता है कि जो भी ये वैकेंसी का नंबर है इसको 14 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो नंबर हमारे मेंस देने वाले बच्चों का है। सो 1000 लोग रेकमेंड करने थे, तो 14 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 14,000 पीपल विल गिव द मेंस। थोड़ा सा ये नंबर 14 से कम होता है, 13.8 13.5 इज द एक्चुअल नंबर। मैं आपको बस आई एम गिविंग दिस टू यू फॉर रेफरेंस। अब प्रीलिम्स में यूपीएससी क्या कहता है, एनीवन हु इज ग्रेजुएट, जो भी ग्रेजुएट है वो आके प्रीलिम्स दे सकता है। यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो लेट से 10 लाख पीपल फिल द फॉर्म एंड एक्चुअली 5 लाख पीपल अपीयर इन द प्रीलिम्स। अब यहां 5 लाख में से फर्स्ट फिल्ट्रेशन होनी है ऑफ 14,000। अब यूपीएससी को क्या करना है, इन 5 लाख में से आउट ऑफ दीज 5 lakhs यूपीएससी हैज टू चूज द बेस्ट 14,000। तो यूपीएससी अब क्या कहेगा, यूपीएससी सबका एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराएगा। पहले देखेगा कितने लोगों का सीसैट क्लियर हुआ, जिनका सीसैट ही नहीं है 33%, उनको तो बाहर कर देगा। अब इन 5 लाख में से लेट्स सी द एक्चुअल प्रोसेस नाउ। यूपीएससी ने इन 5 लाख लोगों के 2 पेपर कंडक्ट कराए, एक जनरल स्टडीज एक सीसैट। लेट्स से 1 लाख का तो सीसैट ही नंबर 33% से कम है, तो 1 लाख को यूपीएससी बाहर कर देगा। 4 लाख आर लेफ्ट। अब इन 4 लाख में से यूपीएससी इनके जनरल स्टडीज के नंबर देगा। इन सबका सीसैट तो क्लियर है, यूपीएससी के जनरल स्टडीज का नंबर देगा और एक लिस्ट बनाएगा फ्रॉम 1 ऐसे करके टू 4 लाख। एक पूरी लिस्ट बन जाएगी जनरल स्टडीज के नंबर की, राइट। अब यूपीएससी देखेगा कितने लोग बुलाने हैं मेंस के लिए, 14,000 बुलाने हैं। तो यूपीएससी क्या कहेगा, यहां पर ऐसे नंबर्स हैं 1 2, यहां पर लिखा होगा 14,000, यहां पे आगे लिखा होगा 4 लाख तक पूरी लिस्ट बनेगी। यूपीएससी यहां पे एक काटा मार देगा। At 14,000 they will put a cut. Everyone above this list, everyone above this line come and give the mains exam. Everyone below don't come and give mains exam. प्रीलिम्स की अगर आप मार्कशीट देखोगे उसमें कभी ये नहीं लिखा होता passed in prelims, failed in prelims. No, it says only one word, qualified for civil services mains exam. How do you qualify? जो यूपीएससी ने कट मारा है आप इसके ऊपर हो। समझ आया आप इसके कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है। दे आर द मार्क्स ऑफ द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट। अब पेपर की डिफिकल्टी क्या है, कितने लोग हैं, किस लेवल का पेपर आया है, कंपटीशन क्या है, डज नॉट मैटर टू यूपीएससी। प्रोसेस ये है। अब ऑटोमेटिकली अगर पेपर टफ आएगा तो सबके नंबर कम हो जाएंगे, कंपटीशन ज्यादा होगा तो सब ज्यादा कंपीट करेंगे, राइट। अब समझ आया, हाउ ब्रॉडली समझ आया। अब यहां पर मैंने अभी रिजर्वेशन की बात नहीं करी है, बट ब्रॉडली समझ आया। अब इसको वैलिडेट करने के लिए इस साल का डेटा देख लेते हैं। लेट्स टॉक ऑफ 2024 एग्जाम। 2024 का जो एग्जाम है इसमें वैकेंसीज आई 1056। पीपल हु गेव मेंस वाज 14,200। पीपल हु आर गिविंग द इंटरव्यू आर 2845। तो ऑलमोस्ट वेरीफाई हो रहा है डेटा, ठीक है। एग्जैक्टली 14 टाइम्स नहीं है, 13 पॉइंट समथिंग होगा, यहां एग्जैक्टली 3 टाइम्स नहीं है, 2.8 टाइम्स कुछ होगा, बट ब्रॉडली वेरीफाई हो रहा है डेटा। दिस इज हाउ यू थिंक फॉर द एग्जाम। कोई भी चीज अगर मुझे करनी है तो मुझे इस टाइप की थिंकिंग चाहिए। इट शुड बी लॉजिकल, आई शुड बी अवेयर। मैं अगर ये एग्जाम देने जा रहा हूं, मुझे इस एग्जाम के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए बिफोर आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग। वो मेरी फर्स्ट जॉब है। अगर मुझे पता ही नहीं है एग्जाम के बारे में, देन हाउ एम आई गोइंग टू बी वेल प्रिपेयर्ड। इंटेलिजेंस इन अ वॉर, जब भी कोई वॉर होता है, इंटेलिजेंस कहा जाता है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट।
कि यू नीड टू नो योर एनिमी. सो नो योर एनिमी लाइक दिस, एंड दिस इज माई जॉब. ये मैं आपको करवा दूंगा, आप इसकी टेंशन मत लो. दिस इज, यू हैव ट्रस्टेड मी नाउ, दिस इज माई जॉब टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट द एग्जाम दैट आई नो. ठीक है, तो लेवल ऑफ पेपर इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता कट ऑफ पे. अब ऑफ कोर्स ये तो तब है अगर हम अज्यूम करें कि कोई रिजर्वेशन नहीं है. अगर रिजर्वेशन है तो यूपीएससी कहेगा ओके, अब ये जो लोग सिलेक्ट करने हैं इसमें से 50% जो हैं वो जनरल कैटेगरी, या 40% जो हैं वो जनरल कैटेगरी के होने चाहिए, 10% जो हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के होने चाहिए, ऐसे 27% जो हैं वो ओबीसी कैटेगरी के होने चाहिए. तो उस हिसाब से हर कैटेगरी का कट ऑफ अलग हो जाता है. प्रोसेस सेम है, प्रोसेस सेम है ना. नाउ प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो यहां पर मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है. तो हम सिलेबस देखते हैं. ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री. हिस्ट्री मतलब मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री इज आफ्टर बेसिकली व्हेन ब्रिटिश वर रूलिंग, उस टाइम का टाइम को हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं. उससे पहले मेडिवल, उससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री. तीन तरह की हिस्ट्रीज हैं. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और करंट अफेयर्स. तो ये हमारा सिलेबस है प्रीलिम्स का. इसके अलावा सीसेट तो है ही. नाउ ये सिलेबस हमने देख लिया. और किस टाइप का पेपर है ये? एमसीक्यू पेपर है. नाउ हर सब्जेक्ट को अगर मुझे खुद से पढ़ना हो, मान लो आप यहां नहीं हो, मैं किसी को रैंडमली अगर कोई मेरे से पूछे कि इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, पॉलिटी की, इकोनॉमी, जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको, इकोनॉमी की बात कर लेते हैं. आइडियल तरीका क्या है? दैट पहले आप एनसीईआरटी पढ़ो, फिर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, फिर आप रेफरेंस बुक से ऐड करो, और तब तक पढ़ते रहो जब तक आपको हर कंसेप्ट इतना ही क्लियर हो जैसे आपको ये मैंने अभी कट ऑफ वाली चीज क्लियर कराई. नाउ यू आर क्लियर अबाउट इट, है ना. यू आर क्लियर अबाउट इट. अब तो आपको क्लियर है ना कट ऑफ कैसे बनता है. आपसे कोई पूछेगा हाउ इज कट ऑफ डिसाइडेड, आप क्लियरली बता दोगे. नाउ यू आर क्लियर. इस लेवल की कंसेप्चुअल क्लैरिटी जब आ जाएगी तब हम बात करेंगे, है ना. फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए. दे आर माय बेस्ट फ्रेंड्स. मुझे सारे पीवाईक्यूज करने चाहिए. एमसीक्यू आपको नए एमसीक्यूज करने चाहिए. वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यू नीड टू हैंडल. अभी ये पीवाईक्यूज तो पुराने हैं, बुक में आएंगे ही. एमसीक्यूज नए भी होने चाहिए. फिर जो भी आप यहां पीवाईक्यू एमसीक्यू से सीखोगे आपको नोट्स में ऐड करना चाहिए. आइडियल प्रोसेस ये है. अगर मेरे से कोई भी पूछे, चाहे वो यहाँ पे सारथी आईएएस के स्टूडेंट हो ना हो, मैं दिस इज द आइडियल वे टू डू इट, है ना. अब इसमें प्रॉब्लम बताओ, इस प्रोसेस में प्रॉब्लम बताओ. स्टैंडर्ड बुक क्या होती है, रेफरेंस बुक क्या होती है, उसके बारे में छोड़ो. प्रॉब्लम बताओ इस प्रोसेस में क्या है. बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ह्यूजली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. कितना टाइम लग जाएगा? और मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ये खुद ही करना था तो आप यहां क्यों आए? अगर यही काम आपको खुद ही करना है तो व्हाई डिड यू इन्वेस्ट टाइम हियर? यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम हियर, यू हैव इन्वेस्टेड योर मनी हियर. आपने क्यों करा ये अगर आपको ये खुद ही करना था तो अब मैं बताता हूं हमारी अप्रोच क्या है. आपको इसमें से कुछ भी नहीं करना. यू डोंट हैव टू डू एनी ऑफ दिस, क्योंकि ये हम करते हैं आपके लिए. आई डू दिस फॉर यू. Whichever teacher teaches you, they do this for you. जब मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, जब मुदस्सर आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, जब पल्लवी मैम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगी, जब कवल बवेजा सर आपको स्टार्ट करेंगे विद मॉडर्न हिस्ट्री, यू विल रियलाइज दिस. आपको इसमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये काम हम कर चुके हैं. आपको क्या करना है उसकी बात करते हैं. हमने क्या किया है, व्हाट हैव वी डिसाइड. मार्केट में जो भी एनसीईआरटी अवेलेबल है, जो भी स्टैंडर्ड बुक अवेलेबल है, जो भी रेफरेंस बुक अवेलेबल है, उस सब को हमने पढ़ लिया है. And we have made notes for that, and we are going to now give you what you need to do. देखो हमारा मेन काम क्या है यहां पे. हमारा मेन काम क्या है एज एन इंस्टीट्यूट, एज सारथी आईएएस? एक काम तो ऑब्वियसली यही है दैट वी गिव यू गुड कंटेंट, राइट, दैट वी गिव यू द बेस्ट पॉसिबल टीचिंग, दैट वी इंटरेक्ट विद यू एंड वी मेक श्योर दैट अदर क्रेडिबल पीपल इंटरेक्ट विद यू. बट मेरे हिसाब से हमारा मेन काम है आपका टाइम बचाना. अगर आपने यहां इन्वेस्ट किया है तो आपका उतना टाइम नहीं लगना चाहिए जहां आपका वैसे लगता. एंड इतना ही रोल है हमारा. दैट इज ऑल आवर रोल इज कि आपके काम को सिंपल बनाना. दैट इज ऑल. मेहनत आपकी ही है. आप सिलेक्ट भी हो गए. अभी मैं इंटरव्यू वाले बच्चों से बात कर रहा हूं तो
लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स आर गिविंग द इंटरव्यू, लाइक आई टोल्ड यू 600 पीपल आर गिविंग द इंटरव्यू। तो रोज ही बात होती है मेरी किसी ना किसी इंटरव्यू देने वाले बच्चे से। दे कम एंड टेल मी दैट सर इट इज बिकॉज ऑफ यू दैट वी आर गिविंग द इंटरव्यू। ऐसे इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मी। आप कभी भी सिलेक्ट होगे, इट विल नॉट बी बिकॉज ऑफ मी, होगी आपकी मेहनत। माई जॉब इज टू जस्ट मेक योर जॉब इजियर, कि अगर आपको कुछ करने में 10 घंटे लगते तो अब वो करने में 2 घंटे लग रहे हैं, इतना ही काम है मेरा। यू आर स्पेंडिंग योर मनी हियर टू सेव योर टाइम, नथिंग एल्स। और कुछ नहीं कर सकते हम, मेहनत आपकी ही है, थोड़ी लक है, थोड़ा भगवान पे है, थोड़ी मेहनत है। वी कैन ऑफ कोर्स गिव यू अ डायरेक्शन एंड मेक योर जॉब सिंपलर, इतना ही काम है। तो अब बताता हूं कि आपको क्या करना है। What we will be doing is we will be giving you lectures. अब अगर आपको पता हो, ये आपने थोड़ी बहुत अगर रिसर्च की हो मार्केट के बारे में, अगर आपने देखा हो, मोस्ट फाउंडेशन कोर्सेज के जो लेक्चर्स चल रहे हैं उसमें मुझे क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है, आई ऑल्सो फेस दिस प्रॉब्लम, कि वहां पर जैसे मैंने आपको लेट्स से आई एम टीचिंग यू दिस लेक्चर, मैं आपको यही चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू अबाउट द एग्जाम, तो मैं आपको डिक्टेट करने लग जाऊं, राइट दिस, फिर आप बैठ रहे हो नोटबुक में लिख रहे हो। होता है या नहीं होता है कि डिक्टेशन चल रही है, लोग लिख रहे हैं। यार यू आर नॉट 8th ग्रेडर्स, आप 8th क्लास में नहीं हो कि आपको डिक्टेट किया जाए, है ना। मेरा काम आपको समझाना है, जैसे मैंने आपको अभी वो कट ऑफ वाली प्रोसेस समझाई। नाउ शुड आई नाउ डिक्टेट टू यू इन इंग्लिश कि क्या लिखना है वहां पे? आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड, आपने समझ लिया, अब आप लिख लोगे। ऑफ कोर्स एक पेपर पे लिखा हुआ आपको मिलना चाहिए। So along with these lectures, we give you PDFs already. और जो सबसे बड़ी चीज है, ये अलग नहीं है, ये भी मैंने बहुत देखा है, पीडीएफ नोट्स में कुछ लिखा है, लेक्चर्स में कुछ लिखा है। लेक्चर्स के लोग हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं, फिर हैंड रिटन नोट्स भी हैं, पीडीएफ नोट्स भी हैं, दोनों पढ़ो। ये अलग नहीं है। जिस नोट से पढ़ाएंगे वही नोट्स आपको देंगे ताकि आपका टाइम बचे। मेरा काम आपका टाइम बढ़ाना नहीं है, टाइम कम करना है। So the way we teach you is from these lectures and PDF notes. अब ये तो सिर्फ कंटेंट हुआ, अब आगे डिस्कस करते हैं। एवरी सिंगल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट इज रेलेवेंट वो यहां पर आपको कवर्ड मिलेगा। आपको अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, हम ही क्लास में ही करवा देंगे आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट हो गई। जितनी भी एनसीईआरटीज, स्टैंडर्ड बुक्स हैं और रेफरेंस बुक्स हैं, आप चाहोगे तो मैं आपको एक बुक लिस्ट भी दे दूंगा। इट इज माई चैलेंज टू यू, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप इनको पढ़ लेना, यू रीड देम एंड यू फाइंड एनी न्यू पॉइंट दैट इज मिसिंग इन दिस पीडीएफ। आपको कोई पॉइंट ऐसा मिलेगा ही नहीं जो यहां पर मिसिंग हो। आप फिर भी पढ़ना, बुक पढ़ने से एक हमारी भी डेवलपमेंट होती है, नया पर्सपेक्टिव मिलता है। बुक इज ऑलवेज रिटन फ्रॉम अ बेटर वे, इट्स लिटरेरी बुक। बुक पढ़ना इज अ गुड हैबिट, आपको पढ़ना है, आप जरूर पढ़ना। बट मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप इसमें से कोई नया पॉइंट ढूंढ देना जो इस पीडीएफ में ना हो। क्योंकि ये पीडीएफ बनी कैसे इसकी बात करते हैं। मैंने नोट्स बनाए अपने लाइफ में, फिर हमारी जो फैकल्टीज है उन्होंने नोट्स बनाए, हमने लाइफ में जितने नोट्स बनाए हैं हमने सारे साथ में रख के उनमें से बेस्ट पार्ट एक्सट्रैक्ट करके ये पीडीएफ बनाई है। एंड फिर हमने दोबारा ये सारी बुक्स पढ़ी हैं टू सी इफ एनीथिंग इज मिसिंग। आपको तो अब यू हैव टू रीड लेट्स से 15-16 subjects in the next 1.5 years. जो कबल सर हैं, फॉर एग्जाम्पल, who will be starting the course with you, who will be teaching you modern history. Kabal sir only has to read history the entire day and he still reads 6-7 hours every day. तो मैं आपको ये चैलेंज दे रहा हूं कि आपको कुछ बाहर का मिलेगा ही नहीं, ठीक है। Previous year questions will be covered in class. Previous year questions in the class we will cover. In the lectures only they will be covered and they will be part of these notes. आपको नोट्स में भी लिखे हुए मिल जाएंगे। Everything that is in these books will be part of this. अब नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज है कि आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए। यही था ना यहां पे, दिस इज द सेम अप्रोच दैट वी नीड टू प्रैक्टिस न्यू एमसीक्यूज। तो हमने इसका भी सोल्यूशन निकाल दिया। एवरी संडे यू विल हैव अ टेस्ट ऑफ 25 MCQs। इसमें आपको रैंकिंग भी मिलेगी
सॉल्यूशंस भी मिलेगा, टाइम बेस्ड टेस्ट होगा, और ऐसा नहीं है कि कोई रैंडम टेस्ट होगा। वॉट एवर यू हैव रेड इन द वीक, आपने इस वीक में जो भी पढ़ाई करी होगी उसका टेस्ट आपको यहां पर मिलेगा। तो अब आपने नए एमसीक्यूज भी कर लिए, सारी स्टैंडर्ड बुक्स भी कवर कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए, लेक्चर्स के थ्रू आपको, और लेक्चर्स लाइव हैं, सो यू कैन आस्क योर डाउट्स ऑल्सो। हमने हर सैटरडे को, ऑन एवरी सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास है, सैटरडे को हमने डाउट रेजोल्यूशन स्पेशली रखा है, डीआरएस, कि जो भी आपके डाउट्स आए आप सैटरडे को पूछ लो, ताकि आप संडे को टेस्ट में परफॉर्म कर सको। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आ गई, डाउट्स भी क्लियर हो गए, एवरीथिंग दैट वी कुड पॉसिबली हैव वो पीडीएफ नोट्स में भी लिखा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर हो गए, एमसीक्यूज भी हमने कर लिया संडे को, और वीक का एक हमारा प्रॉपर शेड्यूल भी बन गया। क्लियर? दिस इज द अप्रोच वी आर फॉलोइंग, ये अप्रोच हम फॉलो करना चाहते हैं। अब पढ़ लेते हैं इसको। Every subject will have, like, although I have explained all of this only, so that's okay. Now, अब आते हैं इस स्टोरी के विलेन पे। अब इस स्टोरी के विलेन पे आते हैं। अभी तक तो आसान डिस्कशन हो रही थी, अब आते हैं स्टोरी के विलेन पे। इस स्टोरी का विलेन है मेंस। लोगों को लगता है प्रीलिम्स टफ है, ऑफ कोर्स प्रीलिम्स टफ है, मतलब आप सोचो आपको 5 लाख लोगों में से 14,000 में आना है, बट मेंस की बात करते हैं। मेंस में आपको उन 14,000 में से जो क्लियर कर चुके हैं प्रीलिम्स, उसमें से टॉप 3,000 में आना है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा फाइनल सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन कितने मार्क्स में से होता है? फाइनल सिलेक्शन बताओ, अब आप अवेयर हो जो लोग, बताओ कि फाइनल सिलेक्शन में कितने मार्क्स होते हैं? फाइनल मार्कशीट कितने मार्क्स की बनती है? हाउ मेनी मार्क्स आर देयर इन फाइनल सिलेक्शन? 2025। और इसका डिवीजन क्या है? 1750 मार्क्स फॉर मेंस, 275 मार्क्स फॉर इंटरव्यू। तो आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा वेटेज आपके सिलेक्शन में इसकी है। इट इज दिस दैट डिसाइड्स whether you will get selected or not, और कुछ नहीं है। This is the only thing that decides if you get selected or not. Nothing else will decide. इंटरव्यू में ऑफ कोर्स इंटरव्यू की वेटेज है। अब इसमें एक और चीज आपने नोटिस करी होगी, प्रीलिम्स में हमने क्या देखा था कि प्रीलिम्स में कट ऑफ लिस्ट है। देयर इज दिस कट ऑफ लिस्ट इन प्रीलिम्स, दिस टाइप ऑफ लिस्ट। आप यहां हो इस लिस्ट में, या यहां हो, या यहां हो, या यहां हो, कट ऑफ से ऊपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके फाइनल सिलेक्शन में उसके बाद, क्योंकि ये नंबर नहीं काउंट होते फाइनली। कौन से नंबर काउंट होते हैं? मेंस के नंबर काउंट होते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन, जो लोग अवेयर हैं उनसे ही पूछूंगा, देखते हैं आप कितना अवेयर हो। टू बिकम द टॉपर, टू गेट ऑल इंडिया रैंक 1, हाउ मेनी मार्क्स डू यू नीड आउट ऑफ 2025? नॉर्मली जो टॉपर होते हैं उनके 2025 में से कितने नंबर आते हैं? जो टॉपर होते हैं आउट ऑफ 2025, दे जनरली स्कोर क्लोज टू 1000। विद 1000 मार्क्स आउट ऑफ 2025, 1000 मार्क्स आउट ऑफ 2025, आप ऑलमोस्ट श्योर हो कि आप टॉप 10 में, टॉप 15, टॉप 20 में हो गए। ये इंटरव्यू और मेंस मिला के हैं, दिस इज इंक्लूडिंग मेंस एंड इंटरव्यू बोथ। ठीक है, 1000 से थोड़ा ऊपर होता है, 105, 1050, 1060, इस टाइप के मार्क्स रहते हैं। कभी कभी कोई बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्म कर दे तो 1100 भी आ सकते हैं, बट विद 1000 यू आर श्योर कि आप आईएएस बन जाओगे। विद 1000 मार्क्स यू आर श्योर दैट यू विल बिकम आईएएस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, रैंक 1 लाने के लिए मे बी यू नीड 1100, बट ब्रॉडली यू विल बी श्योर। तो अब देखते हैं इसमें से मेंस में कितने चाहिए। मेंस में हमें चाहिए इसमें से, एक वेरी गुड स्कोर इन मेंस इज 850। 850 एक बहुत ही डिसेंट स्कोर माना जाता है मेंस में, इट्स अ वेरी वेरी गुड स्कोर। 850 के साथ अगेन यू आर ऑलमोस्ट श्योर दैट यू विल बी आईएएस।
मतलब या जो भी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, आपकी आईपीएस या आईएफएस भी फर्स्ट प्रेफरेंस हो सकती है। 850 इज अ वेरी वेरी गुड स्कोर। तो हमें 1750 में से 850 नंबर लाने हैं ब्रॉडली, ठीक है। अब ये तो टॉप स्कोर है, ये दिस इज लाइक टॉप स्कोर। अब मैं आपको बताता हूं व्हाई मेंस इज द विलन ऑफ द स्टोरी। इंटरव्यू के मार्क्स और मेंस के मार्क्स की वेटेज ऑब्वियसली इक्वल है, मतलब 1 मार्क मेंस में आए या 1 मार्क इंटरव्यू में आए, बात सेम है। फाइनल सिलेक्शन की बात करते हैं। फाइनल सिलेक्शन कितने मार्क्स में से हो रहा है? 2025 मार्क्स में से फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। मेरे मार्क्स कितने आए थे इन 2022? मैं आपको वो दिखाता हूं। एनीबडी नोस? पता होगा वैसे कई लोगों को, कई बार बता चुका हूं ये बात, बट आई विल टेल यू व्हाट माय मार्क्स वर। माय मार्क्स वर 970 फाइनल मार्क्स, 970 टोटल। ऑल इंडिया रैंक वाज 297। सर्विस allocated was Indian Revenue Service Income Tax, one of the very good services that are offered in this exam, ठीक है। टॉप 3 टॉप 4 की सर्विस है ना। अब जरा इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। अब नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड। मेंस में कितने पेपर हैं? इंटरव्यू छोड़ देते हैं अभी के लिए। मेंस में कितने पेपर होते हैं? एक पेपर है एसए का। चलो ये बताओ मेंस में पेपर कितने होते हैं? लास्ट क्वेश्चन। 9 पेपर होते हैं इंटरव्यू में, देखते हैं मेंस में। एक एसए का पेपर है, एक जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, जनरल स्टडीज 4, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2। इसके अलावा 2 लैंग्वेज पेपर्स हैं, एक इंग्लिश लैंग्वेज पेपर होगा और एक इंडियन लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस, जिसमें मैंने हिंदी चूज करी थी। अब ये जो 2 पेपर्स हैं ये मियरली क्वालिफाइंग हैं, ये 300 मार्क्स के होते हैं और आपको इसमें 75 मार्क्स लाने हैं। ये ज्यादा कॉन्सिक्वेंस के नहीं है, ये पेपर होंगे जरूर, वी जस्ट हैव टू क्वालिफाई देम, इसके बियॉन्ड हमें कुछ नहीं करना, इनको सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो इनको हटा देते हैं। इन पेपर्स के मार्क्स काउंट होते हैं। ईच ऑफ दीज पेपर्स इज 250 मार्क्स। तो 7 इंटू 250 मार्क्स इक्वल टू 1750 टोटल। 1750 प्लस 275 इक्वल टू 2025। 7 पेपर हैं जिनके मेंस में मार्क्स काउंट होते हैं। अब ये मेरे मार्क्स आए हैं टोटल मेंस और इंटरव्यू मिला के। हम अज्यूम कर लेते हैं दैट इन एवरी पेपर 250 मार्क्स के पेपर हैं। जैसे एसए में मेरे 250 में से 122 मार्क्स है, जीएस 1 में मेरे 104 मार्क्स थे, जीएस 2 में मेरे 113 मार्क्स थे। ऐसे मार्क्स होंगे हर पेपर में, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हर मेंस के पेपर में, इन एवरी सिंगल मेंस पेपर आई गॉट 2 मार्क्स मोर। मेरे को हर पेपर में जो मार्क्स मिले, जैसे एसए में 122 मिले तो 124 मिल जाते, 2 नंबर बढ़ जाते बस मेरे। और एक अज्यूम कर लेते हैं सिनेरियो कि हर पेपर में मेरे 2 मार्क्स कम हो जाते। तो जैसे एसए में 122 मिले तो मेरे को मान लो 120 मिलते, जीएस 1 में 104 मिले तो 102 मिलते, जीएस 2 में 113 मिले तो 111 मिलते। इन दोनों सिनेरियोस में देखते हैं क्या होता। अगर हर में मेरे को 2 मार्क्स ज्यादा मिल जाते तो मेरे कितने मार्क्स बनते टोटल, और 2 नंबर कम मिलते तो कितने नंबर बनते टोटल, ये बताओ। फिर मैं आपको एक्चुअल डेटा खोल के बताता हूं क्या होता। अगर 2 मार्क्स बढ़ जाते तो मेरे मार्क्स होते 14 मार्क्स ऐड करने हैं 984, और अगर 2 मार्क्स हर पेपर में घट जाते तो 956, है ना। यही है, 7 इंटू 2 बढ़ाने हैं तो 14 नंबर बढ़ाने हैं, 14 नंबर बढ़ाए तो 984, 14 नंबर घटाए तो 956। अब आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस आता? नाउ दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ दिस सेशन, और द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ दिस सेशन। मेरी रैंक याद रखना, at 984 my rank would have been 169। 2 नंबर हर पेपर में बढ़ा के रैंक में गैप देखो, एग्जैक्टली 169 रैंक होती मेरी एक बैचमेट है पूजा, हर स्कोर इज दिस, हर रैंक इज 170, 169 वाले का भी सेम स्कोर है, देख रहे हो। दिस वुड हैव बीन द रैंक। ह्यूज इंप्रूवमेंट, 2 नंबर बढ़े हैं बस हर पेपर में, बस 2 नंबर, बस 2 नंबर। और फ्रॉम 297 आई वुड हैव गॉटन टू 169।
ठीक है, और इस केस में क्या होता, इस केस में आई वुड बी आउट ऑफ द लिस्ट, मेरी रैंक ही नहीं आती, मैं सिलेक्ट ही नहीं होता। ये केस उतना स्कैरी नहीं है क्योंकि मेरी रैंक आ गई, ये केस बहुत स्कैरी है। हर पेपर में बस मैंने 2 नंबर कम किए हैं, इस रैंक पे आईआरएस मिलता है, इस रैंक पे आईपीएस मिलता है। आप 2 नंबर और बढ़ा लो हर पेपर में, आप आईएएस बन जाओगे। आप 2 नंबर और बढ़ा लो हर पेपर में, यहां से आप आईएएस की लिस्ट में आ जाओगे। आप 2 नंबर आपने कम कर दिए यहां से, आप बाहर, आपको कोई भी सर्विस नहीं मिल रही है, यू आर आउट ऑफ, आपका नाम ही नहीं है फाइनल पीडीएफ में। दैट इज वाई मेंस इज द विलन, दैट इज वाई मेंस इज द विलन। आईएएस आईएफएस सेम ऑलमोस्ट सेम एलोकेशन है। टॉप 80 में रैंक आएगी जनरल कैटेगरी में तो या तो आईएएस मिल जाएगा या आईएफएस मिल जाएगा, बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस। दैट्स द पॉइंट हियर, दिस इज द विलन। ये है ना, ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तो इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। अब मैं एक चीज करूंगा, ये 2 तो क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, उनको हटा देते हैं। जो 7 पेपर्स हैं उनका ये सिलेबस लिखा है। एस्से पेपर की बात कर लेते हैं। एस्से में आपको 2 एस्सेज लिखने हैं ऑफ 125 मार्क्स ईच। मैं आपको अपने एस्से का, मेरे 122 मार्क्स आए हैं एस्से में, एस्से में मेरे मार्क्स काफी डिसेंट अच्छे मार्क्स हैं। मैं आपको टॉपिक बताता हूं जिस पे मैं एस्से लिख के आया हूं, ताकि आपको आइडिया रहे व्हाट यू आर फेसिंग। ये था मेरे एस्से का टॉपिक, यू कैन नॉट जंप इन टू द सेम रिवर ट्वाइस। कितने वर्ड्स का ऐसे लिखना है? 1200 वर्ड का ऐसे लिखना है। कितने पेजेस? 10 पेजेस, 10 to 12 पेजेस का ऐसे लिखना है। कितने मार्क्स हैं इस ऐसे के? 125 मार्क्स हैं, 2 ऐसे होते हैं। टॉपिक पढ़ो, यू कैन नॉट जंप इन टू द सेम रिवर ट्वाइस। जंप नहीं था, स्टेप था। यू कैन नॉट स्टेप इन टू द सेम रिवर ट्वाइस। 1200 वर्ड्स का ऐसे, ये है ऐसे का पेपर। बाय द टाइम दिस कोर्स इज कंप्लीट, यू विल फील कि इससे आसान कोई टॉपिक ही नहीं है ऐसे लिखने के लिए। बाय द टाइम दिस कोर्स इज कंप्लीट, आप ये 1200 क्या 12,000 वर्ड का भी ऐसे लिख लोगे इस पे। आप इसकी टेंशन मत लो, इट इज आवर जॉब, आई एम जस्ट अप्रेजिंग यू ऑफ द सिचुएशन। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कई जगह मैंने देखा है कि बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर दे आर नॉट इवन टेलिंग यू द ट्रूथ ऑफ द एग्जाम। यार एग्जाम टफ है, पहले हम इसको एक्सेप्ट करें कि एग्जाम टफ है, तब तो हम प्रिपरेशन अच्छी करेंगे। फर्स्ट वी एक्सेप्ट दैट द चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस इज टफ, तब तो हमारा बेस्ट वर्जन निकल के आएगा। जब तक हमारा बेस्ट वर्जन ही निकल के नहीं आएगा तब हम कैसे परफॉर्म करेंगे? तो द पॉइंट हियर इज टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट द जॉब इन फ्रंट ऑफ अस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। आप भी अपनी बेस्ट मेहनत करो और हम भी करते हैं, ताकि वी गेट टू अ पॉइंट वेयर वी एक्चुअली मेक इट। इसीलिए मैं कह रहा हूं एक्सेप्ट करते हैं कि पेपर टफ है। सो एसेज आर टफ। ऑप्शनल पेपर, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज करोगे, उसके 2 पेपर होंगे ऑफ 250 मार्क्स ईच। इसमें वो आपसे एक ऑनर्स लेवल नॉलेज एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपने एंथ्रोपोलॉजी लिया फॉर एग्जांपल, तो ऑनर्स लेवल की नॉलेज। ऑप्शनल कैसे लेना है, कब लेना है, उसकी बात करेंगे। अब बात करते हैं इनकी, जो बच गए 4 जीएस के पेपर। जनरल स्टडीज हमारे प्रीलिम्स में भी आया था, जनरल स्टडीज हमारे मेंस में भी आ रहा है। जनरल स्टडीज की बात करते हैं। व्हाट इज देयर इन द सिलेबस ऑफ जनरल स्टडीज? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट। इनको मैंने अलग मार्क किया है और बाकियों को मैं अलग मार्क करूंगा। इंडियन सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल इश्यूज, गवर्नेंस, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। मैंने अलग क्यों मार्क किया ब्लू में और रेड में? जो ब्लू कलर में है, दीज आर मेंस एक्सक्लूसिव। ये तो प्रीलिम्स में भी आते हैं, रेड वाले तो प्रीलिम्स में भी आते हैं। हिस्ट्री प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है। ज्योग्राफी प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है।
इंडियन सोसाइटी प्रीलिम्स में नहीं आता, मेंस में आता है। तो मेंस का सिलेबस इज मच बिगर। जो प्रीलिम्स में आता है वो तो मेंस में आता ही है। मेंस में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, एस्से भी लिखना है, ऑप्शनल भी करना है। मेंस इज मच बिगर इन इट्स एम्बिट। मेंस बहुत बड़ा पेपर है, बहुत डिफिकल्ट है, तो मेंस को टाइम देना चाहिए। एंड दिस इज, देखो इसका मतलब क्या है, मेंस पढ़ाना भी मुश्किल है, मेंस बड़ा है, डिफिकल्ट है, हर नंबर मैटर करता है, तो मेंस को पढ़ाना भी मुश्किल है, राइट? इट्स ऑब्वियसली डिफिकल्ट टू टीच मोर सब्जेक्ट्स इन दिस मच डेप्थ। तभी आप देखोगे कि मेंस के अलग से कोर्सेज बहुत कम होते हैं, प्रीलिम्स के कोर्सेज बहुत सारे होते हैं। आप सर्च करना मार्केट में, प्रीलिम्स के बहुत कोर्सेज मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे, ऑलमोस्ट एवरीवन इज टीचिंग फॉर प्रीलिम्स। मेंस के कोर्सेज बहुत कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि मेंस पढ़ाना मुश्किल है, मेंस में एक एक नंबर मैटर करता है, मेंस में रिसर्च करनी पड़ती है, मेंस में बहुत पढ़ना पड़ता है। मैं ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाता हूं मेंस में, GS3। इस साल मैंने GS3 का कोर्स पढ़ाया और मैं आंसर राइटिंग पढ़ाता हूं मेंस के लिए आपको। मैं भी आपको आंसर राइटिंग भी पढ़ाऊंगा। आई विल टीच यू हाउ टू राइट आंसर्स। मैंने GS3 का कोर्स पढ़ाया और आंसर राइटिंग का कोर्स पढ़ाया। उस कोर्स में से 200 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है? GS3 का जो मैंने कोर्स पढ़ाया, उसका जो कंटेंट बना, जो फाइनल कंटेंट बना, कुछ 600-700 पेज का कंटेंट बना, जो आपको मिलता है। द कंटेंट दैट यू गेट, इट वाज 500-600 पेजेस फॉर दिस वन कंप्लीट पेपर ऑफ मेंस। आपको क्या लगता है मैंने कितने पेज पढ़े उस कंटेंट को बनाने के लिए? आई ऑल्सो मस्ट हैव रेड माई सेल्फ। आपको कोई आइडिया, मैं आपसे गेस चाहता हूं कि मैंने कितने पेजेस पढ़े टू गेट टू दैट 500-600 पेजेस दैट यू अल्टीमेटली गॉट? एनीबडी वुड लाइक टू टेक अ गेस कि मैंने कितने पेजेस पढ़े फॉर दिस प्रोसेस? इट वॉज क्लोज टू 8,000। एक एक टॉपिक पढ़ने के लिए क्लोज टू 8,000। एक एक टॉपिक पढ़ने के लिए आई हैड टू गो इनटू ह्यूज अमाउंट ऑफ डिटेल, ताकि कोई गलती ना हो और आपको बेस्ट कंटेंट मिले, ठीक है? हर मेंस के पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं। अब आउटकम देखते हैं क्या हुआ। 20 क्वेश्चंस कम इन GS3 पेपर। ऐसे GS1 में भी 20, GS2 में भी 20 क्वेश्चंस आए। मैंने दिए अपने स्टूडेंट्स को, जो मैं आपको भी दूंगा, फाइनल 600 पेजेस, नॉट एग्जैक्टली 500, 600 पेजेस ऑफ कंटेंट आई गेव यू कि आप इससे पढ़ना, प्लस आई गेव लेक्चर्स। इसमें करंट अफेयर्स, सबको जो भी पढ़ना था ये मैंने सप्लाई किया। पता है अल्टीमेटली क्या हुआ? 17 क्वेश्चंस डायरेक्ट हिट। मतलब एक वर्ड भी चेंज करने की जरूरत नहीं थी, आंसर एज इट इज लिखा हुआ था पेपर में, वहां पे जाके रिप्रोड्यूस करना था। 17 क्वेश्चंस वर डायरेक्ट हिट फ्रॉम द GS3 कंटेंट। आप कहोगे तो मैं आपको अभी दिखा सकता हूं, ठीक है? दिस इज द क्रेडिबिलिटी वी ब्रिंग इन द मेंस एग्जाम, दिस इज द इनसाइट वी ब्रिंग इन द मेंस एग्जाम, एंड दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू हैव विद अस। तो आप इसकी टेंशन मत लो, हम हैं यहां पे आपके लिए, नॉट ओनली फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस ऑल्सो। और जहां तक प्रीलिम्स की बात है, जस्ट टू टेल यू अबाउट व्हाट क्रेडिबिलिटी वी ब्रिंग हियर, जो मैंने प्रीलिम्स दिया था अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में 2021 में, तो द कट ऑफ द प्रीलिम्स was 87 marks out of 200. जो मेरे मार्क्स आए थे, एक्चुअल मार्क्स, द मार्क्स दैट आई गॉट वाज 115, एंड दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। सो 35 मार्क्स अबव द कट, 28 मार्क्स अबव द कट ऑफ। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वी आर हियर टू डू ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू, जस्ट नीड टू फॉलो द प्रोसेस। नाउ ये सबसे मुश्किल पेपर है, ये याद रखना है हमें कि ये सबसे मुश्किल काम है, तो इसके लिए हमें प्रिपेयर ढंग से करना है। अब फॉर्मेट देख लेते हैं मेंस का, ब्रॉडली जल्दी से बताता हूं आपको। 20 क्वेश्चंस होते हैं एक मेंस के पेपर में, 10 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ईच, मतलब 100 मार्क्स। 10 क्वेश्चंस ऑफ 15 मार्क्स ईच, मतलब 150 मार्क्स। टोटल बने 250 मार्क्स। जो 10 क्वेश्चन का पेपर है उसमें आपको 2 पेजेस लिखने हैं। जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आपको 3 पेजेस लिखने हैं। एग्जाम कैसे होता है? फ्राइडे मॉर्निंग होगा एस्से का पेपर, सैटरडे होगा GS1 GS2 साथ में। GS1 सुबह होगा 9 से 12, GS2 शाम को होगा 2 से 5। संडे फिर दोबारा होगा, संडे सुबह GS3, संडे शाम को GS4। तो ये भी नहीं है कि आपको बीच में टाइम मिलता है यहां पे। दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड।
इसीलिए यूपीएससी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें ये निकालना पड़ता है। एंड दिस इज व्हाई मेंस नीड्स टू बी फोकस्ड ऑन। अब मेंस में नॉर्मली लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है? कंटेंट एवरेज है, नोट्स कंसोलिडेटेड नहीं है, सीधा टेस्ट सीरीज लिखी, पीवाईक्यूज इग्नोर किए, आंसर राइटिंग सीखी नहीं। हम आपके साथ क्या करने वाले हैं? एडवांस्ड एंड एनालिटिकल कंटेंट। द कंटेंट दैट वी गिव यू, उसमें आपको कभी यह प्रॉब्लम ही नहीं आएगी दैट यू हैव एनी इश्यूज इन अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग इन द मेंस एग्जाम। इसके बाद आई ऑल्सो मेक 1 पेजर नोट्स, जिससे आप पूरा एक पेपर एक दिन में रिवाइज कर सकते हो। लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, इफ आई बी एबल टू फाइंड दैट वीडियो और नॉट। ये देखो, लुक एट दिस वीडियो। दिस इज अ 9 आवर लॉन्ग वीडियो जो मैंने यूट्यूब पे पढ़ाई है, और मैंने पूरा GS3 का सिलेबस इन 9 आवर्स पूरे मेंस के लिए रिवाइज करा दिया था। यूट्यूब पे है ये, और ऐसे 1 पेजर नोट्स में बना के आपको दूंगा ताकि आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर सको। कंप्लीट सिलेबस रिवाइज्ड इन वन डे। पूरे मेंस का एक पेपर 1 डे में हमने रिवाइज कर दिया। ठीक है, दिस इज द क्रेडिबिलिटी वी ब्रिंग इन द मेंस एग्जामिनेशन। ओके, नाउ इसके साथ आई विल बी टीचिंग यू ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ मेंस। आज तक मेंस में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो हम साथ में करने वाले हैं। उस कोर्स का नाम राइट स्मार्ट है। यू माइट हैव हर्ड द नेम, इट इज fairly popular for the mains examination. Write Smart is included in your course. I will be covering every mains previous year question with you, ताकि आपको मेंस में भी दिक्कत ना आए। वैल्यू एडिशन, आंसर राइटिंग, टेस्ट, एवरीथिंग यू कैन लीव टू अस। वी आर गोइंग टू डू दिस। हम यहीं पे करने वाले हैं वो, राइट? तो मेंस पे भी उतना ही फोकस है जितना प्रीलिम्स पे है, so you don't need to worry. Let's now come to the plan that we have made for the next 1.5 years. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखते हैं। This is the plan, broadly our plan for the next 1.5 years. We are starting with modern history. देखो आइडिया क्या है कि 4 जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, there are 4 core subjects that are required to understand this exam, जो बिल्कुल बेसिक हैं। वो हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी। तो सबसे पहले वही 4 सब्जेक्ट हम करेंगे। हिस्ट्री विल बी स्टार्टेड विद यू विल कपिल बवेजा सर, आपकी क्लासेस हिस्ट्री से स्टार्ट होंगी। देन यू विल गो ऑन टू ज्योग्राफी विद पल्लवी मैम, देन पॉलिटी विद मुदित गुप्ता सर, देन इकोनॉमी विद मी। ये चारों चीजें हम पहले कवर करेंगे। दिस विल बी आवर फाउंडेशन, आवर बेसिक्स विल गेट क्लियर फ्रॉम दिस। देन वी विल कम टू मेंस प्रिपरेशन फेज। मेंस प्रिपरेशन फेज, इसमें हम आंसर राइटिंग, टेस्ट, राइट स्मार्ट, GS 1, 2, 3, 4 और एस्से, ये सारा कवर करेंगे। एस्से विद यू विल बी कवर्ड विद मुदित सर। मुदित सर ने 3 बार ये एग्जाम निकाला है। मुदित जैन सर आई एम टॉकिंग अबाउट। 3 times he has cleared this exam, thrice। हमसे एक बार नहीं निकल रहा है ना। That is the person who will be covering essay and ethics with you, because essay ethics आपने भी सुना होगा, मेंस में is most important. So the best person for the job will be covering this with you, essay and ethics. Now जब ये हम कर लेंगे, then by January of 2026 we would have done our foundation subjects, we would have done our main subjects, we would have done our mains answer writing. Then we will come to science and technology, एनवायरमेंट एंड करंट अफेयर्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट मैं आपके साथ करूंगा, करंट अफेयर्स मुदित सर आपके साथ करेंगे। देन वी विल बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर प्रीलिम्स। अब देखो हम किस कंडीशन में हैं। बाय मार्च, मई में हमारा प्रीलिम्स है। आवर प्रीलिम्स इज इन मई 2026 के मई में हमारा प्रीलिम्स है। मई 2026 दिस इज व्हेन आवर प्रीलिम्स इज देयर। March 2026 तक we have covered all the syllabus, done MCQs, done tests for prelims,
पीवाईक्यूज भी कवर्ड है, सारा सिलेबस कवर्ड है, लास्ट 2 महीने बचे हैं फॉर सेल्फ रिविजन। मई में प्रीलिम्स देने के बाद, प्रीलिम्स देके तो बात खत्म नहीं होगी, अगस्त में हमारा मेंस है और हम ऑलरेडी मेंस के लिए पूरा प्रिपेयर्ड हैं। हम पूरा मेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो सबसे डिफिकल्ट स्टेज है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस टाइम पे हम सिर्फ रिवीजन करेंगे और सेल्फ इंप्रूवमेंट करेंगे, बस। दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू डू। बेसिकली आई वाज टेलिंग यू दैट वी हैव डन एवरीथिंग, वो तब तक हम सब कर चुके होंगे। और जो आपके अब हिस्ट्री से स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, आपके कुछ क्वेश्चन होंगे कि एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री कैसे कवर होगा, ये भी डाउट मैंने देखा अभी। देखो, हम आते हैं थोड़ी सी प्लानिंग करके, थोड़ा सोच के आते हैं क्लास में। अपकमिंग ओरिएंटेशन फॉर हिस्ट्री ऑन 8 जनवरी 4:30 PM विद कवल वेजा सर। पहले से करी हुई है प्लानिंग, बस थोड़ा मौका दो, है ना। क्या हिस्ट्री कैसे कवर करेंगे, वो उसके लिए भी एक सेशन रखा हुआ है। ये फर्स्ट ओरिएंटेशन सेशन है, लास्ट नहीं है। आपको इतनी ओरिएंटेशन और इतनी स्ट्रैटेजी बता देंगे, आप परेशान हो जाओगे मेरी शक्ल देख के एंड तक, कि ये बंदा बोले ही जा रहा है, इसको ही सुनना पड़ रहा है। होना मत, वैसे आपके काम की बात हो रही है। एनीवे, नाउ दिस इज आवर ब्रॉड प्लान, दिस इज आवर ब्रॉड प्लान जो हम करने वाले हैं। अब ये प्लान है फॉर नेक्स्ट 1.5 years, कि 1.5 साल में कैसे हैंडल करना है। अब बात करते हैं कि इस कोर्स को आपको यूज कैसे करना है। आपकी क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे एट 4:30 PM। सैटरडे को आपका डाउट रेजोल्यूशन सेशन होगा। अगर आप लाइव आ सकते हैं वेल एंड गुड, अगर आप नहीं आ सकते तो ये रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल हैं टिल द एंड ऑफ 2026। कभी भी आप ये रिकॉर्डिंग देख सकते हैं और कितनी भी बार देख सकते हैं, इस पे कोई लिमिट नहीं है। रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल एट एनी टाइम। आज जैसे लेक्चर होगा, यही भी लेक्चर होगा आपको, आप देखना विद इन 2-3 आवर्स दिस रिकॉर्डिंग विल गेट अपलोडेड। वो प्रोसेसिंग टाइम होता है एक वीडियो का, दैट रिकॉर्डिंग इज ऑलवेज अवेलेबल, जब देखना चाहो आप देखो, दैट्स अप टू यू। नाउ व्हाट इज एन आइडियल डे दैट लुक्स लाइक। आपका आइडियल डे कैसा है? देखो, मैं आपका डेली शेड्यूल अगर मैं आपकी जगह बनाऊं कि आपको कैसे अपना डे प्लान करना चाहिए, अराउंड 4:30 टू लेट से 7:30 ब्रॉडली, इससे लेट कभी नहीं होगा। ये आपकी क्लास चली, सेम टाइम 4:30, सेम टाइमिंग ऑन सैटरडे ऑल्सो। ये आपकी क्लास चली। अब इसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे का ब्रेक लोगे। आपको थोड़ा टाइम भी चाहिए, क्लास हुई है अभी, टू टेक सम ब्रेक। मैं बस आपसे चाहूंगा कि आप अब यहां पर गिव 1 hour टू स्टडीज टू रिवाइज व्हाट वाज टॉट इन द क्लास। जो भी क्लास में पढ़ाया गया उसको रिवाइज करने के लिए 1 घंटा आप दीजिए बिफोर यू फाइनली स्लीप। देन यू विल वेक अप द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे लेट्स से यू स्टार्ट एट 9 AM। स्टडी फॉर 3 hours बिफोर द क्लास, और मे बी नॉट इवन 3, इवन 2 hours। 9 to 11 अगर आप पढ़ लोगे, जो क्लास में पढ़ाया गया उसी को, जो क्लास में आप पढ़ाया गया उसी को, या आप ब्रॉडली एक बार रिवाइज कर लोगे। बेसिकली यार द पॉइंट हियर इज, क्लास 3 घंटे की है, मैं चाहता हूं आप 2 घंटे खुद के भी दो। 3 hours ऑफ क्लास, 2 hours ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, दैट इज व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम यू। ब्रॉडली 3 hours एवरी डे आई वांट। 3 hours आप क्लास देखो एंड लेट्स से 2.5 hours आप क्लास को दो। दिस इज 5.5 hours इन अ डे। अगर आप ये मुझे रोज दे देते हो विद कंसिस्टेंसी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दिस इज नॉट इनफ स्टडी टाइम, ये स्टडी टाइम बहुत नहीं है। जो बचा हुआ टाइम है, जनरली स्टडी टाइम दैट आई वुड रेकमेंड टू यू इज 7 to 8 hours पर डे। जो बचा हुआ टाइम है वो आपके ऑप्शनल के लिए है। द रिमेनिंग टाइम इज फॉर योर ऑप्शनल। ओके, नाउ जनरली क्या होता है, मंडे टू फ्राइडे मैं कहूंगा कि आप 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करो। 4 hours डेली शुड बी योर सेल्फ स्टडी, 3 hours शुड बी फॉर क्लास। इस 4 hours में से 2 घंटे हमारे लिए हैं और बाकी 2 घंटे आपके ऑप्शनल के लिए हैं। तो ऑप्शनल के लिए आपको टाइम दिया है थ्रू आउट द कोर्स, राइट।
जनरली आई वुड रेकमेंड कि जब पढ़ाई के मूड में हो तो डोंट टेक अ लॉन्ग ब्रेक। आपने देखा होगा ये भी कि जब लॉन्ग ब्रेक लेते हैं हम, 3-4 घंटे का ब्रेक ले लिया, तो फिर वापस आने का मन नहीं करता, मन ही नहीं करता वापस पढ़ाई करने का, राइट? आपने जो आपको अभी क्लास हुई जैसे आपकी, रीड एंड रिकॉल द क्लास नोट्स, रीड एंड रिकॉल द क्लास नोट्स। उसी के बाद उन्हीं नोट्स में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जो आज पढ़ा है उससे जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो मिलेंगे। सॉल्व द पीवाईक्यूज। अब क्लास अगर 3 घंटे की है तो आपको उसको रिवाइज करने में आधे पौने घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। मैं आपसे क्यों 2 घंटे मांग रहा हूं? मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि जो स्टैंडर्ड बुक है, उस सब्जेक्ट की जो स्टैंडर्ड बुक है, उसको एक बार रीड जरूर करना। देखो, एक चीज है कि मैंने आपको पढ़ाया और फिर आपने बस उसी को पढ़ा, उसी को ऑब्जॉर्व किया। एक है कि आपने खुद से भी थोड़ा सा रीड किया। ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने को मिलेगा नहीं नोट्स में, सब कुछ कवर्ड होगा। बट इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ बुक रीडिंग हैबिट, सिर्फ उस बुक रीडिंग हैबिट के लिए, ताकि आपको एक तो फोमो ना हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट ना हो कि यार मैंने बुक नहीं पढ़ी, कहीं बुक में कुछ और तो नहीं लिखा। और एक हमारी थोड़ी नॉलेज कंसोलिडेशन भी होती है। एक है मैंने सिर्फ सुना, एक है मैंने एक जगह से सुना और एक जगह से मैंने पढ़ा भी। उसके लिए मैं कहूंगा कि बस रीड द स्टैंडर्ड बुक वंस। जैसे आपकी स्टैंडर्ड बुक जब हिस्ट्री की डिस्कशन होगी, कबल सर विल टेल यू व्हाट बुक्स टू गेट, व्हाट बुक्स टू फॉलो। स्पेक्ट्रम ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री इज द स्टैंडर्ड बुक। कबल सर ने आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई, रीड दैट चैप्टर फ्रॉम स्पेक्ट्रम वंस। एक बार पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? जस्ट रीड इट वंस। देन ऑप्शनल को आप 2 घंटे दो, 2 घंटे ऑप्शनल को दो, 2 घंटे हमें दो। नाउ एक्टिव रिकॉल में, ये तो हमारा स्टडी टाइम है ऑफ 7 आवर्स। एक्टिव रिकॉल आई वुड वांट कि आप 1 घंटा एक्टिव रिकॉल को भी दो, राइट? अबाउट एक्टिव रिकॉल ऑल्सो यू शुड गिव 1 आवर। व्हाट इज एक्टिव रिकॉल? जब भी आपको कोई नोट्स दिए जाएंगे, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाता हूं। जब कोई भी आपको नोट्स दिए जाएंगे, एक्चुअली लेट मी जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम जस्ट गेटिंग सम नोट्स हियर। मैं कुछ नोट्स लेके यहां आ रहा हूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं एक्टिव रिकॉल। ठीक है, लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक ऑफ 3 मिनट्स। मैं तब तक नोट्स भी ले आऊंगा। 2-3 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर वहां से कंटिन्यू करते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट, कि कैसे एक्चुअली एक्टिव रिकॉल किया जाता है। ये दिस इज इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न दिस प्रोसेस। ठीक है, लेट्स जस्ट वेट अ मिनट फॉर 3 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। मैं नोट्स लेके आता हूँ। वो नोट्स हैं जो मैं GS3 के लिए मेंस में पढ़ाऊंगा आपको। इसमें एक सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर। कैन ऑल ऑफ यू सी दीज नोट्स? ये नोट्स देख रहे हैं सबको? जो भी आपको नोट्स दिए जाएंगे ना, वो इस फॉर्मेट में होंगे। जैसे यहां पर ये देखो, एक टॉपिक है लैंड रिफॉर्म्स। अब मान लो मैंने आपको लैंड रिफॉर्म्स पढ़ाया, आगे लैंड रिफॉर्म के नोट्स भी होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टॉपिक है लीगल फ्रेमवर्क फॉर लैंड रिफॉर्म्स, एवोल्यूशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, इंडियन एग्रीकल्चर फॉर इंडिपेंडेंस, नीड ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, वीकनेस, बेनिफिट्स, इश्यूज, अदर लैंड रिफॉर्म्स। एक ब्रॉडली यहां पर टॉपिक है। एक्टिव रिकॉल का मतलब है, मान लो मैंने आपको आज लैंड रिफॉर्म्स पढ़ाया, अब आपके पास ये नोट्स हैं, आगे स्क्रॉल करके दिखाता हूं लैंड रिफॉर्म्स के एक्चुअल नोट्स। ये तो इंडेक्स है ना? अगर आप एक्चुअली आगे जाओगे तो यहां से जैसे लैंड रिफॉर्म स्टार्ट है, ये भी चीज मैं आपको दिखा देता हूं। जो भी नोट्स हम बनाते हैं, जो आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो पहले लिखे हैं, सारा डेटा लिखा है, चैलेंजेस ऑफ लैंड, वे फॉरवर्ड सब लिखा है। फिर ये लैंड रिफॉर्म स्टार्ट हुए, लीगल फ्रेमवर्क, क्या फेजेस थे, एवोल्यूशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये एक्चुअल नोट्स हैं। यहां से मैं आपको पढ़ाऊंगा, आई विल टीच फ्रॉम हियर। बट जब आपको रिविजन करनी है, देन योर रिविजन शुड बी फ्रॉम दिस इंडेक्स, रादर देन आप पूरे नोट्स दोबारा खोल के पढ़ो। क्लास के बाद एक्टिवली रिकॉल करो। अगर हम नोट पूरे पढ़ के बार बार हाईलाइट कर रहे हैं, वो होता है पैसिव रीडिंग, वो है पैसिव है, हम पढ़ रहे हैं। आपको मैं क्या कह रहा हूं करने के लिए, मैंने आपको क्लास पढ़ाई, यहां पे लैंड रिफॉर्म्स में लिखा है लीगल फ्रेमवर्क फॉर लैंड रिफॉर्म्स, मैंने क्लास में पढ़ाया होगा। आप रादर देन रीडिंग द नोट्स पर, हमारी क्या अप्रोच होती है रिवीजन की, कि सीधा नोट्स खोल के, अब जहां पे भी लीगल फ्रेमवर्क है, ये पेज नंबर 10 पे है, पेज नंबर 10 से पढ़ना शुरू कर दिया, हाईलाइट करना शुरू कर दिया। वो नहीं करना। क्या करना है, पहले खुद से सोचना है कि यार लीगल फ्रेमवर्क क्या था, याद करने की कोशिश करनी है, एक्टिवली रिकॉल करने की कोशिश करनी है क्लास के इमीडिएटली बाद, कि यार लीगल फ्रेमवर्क क्या था, एवोल्यूशन कैसे हुई है, इंडियन एग्रीकल्चर एट इंडिपेंडेंस कैसा था, कंडीशंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एट इंडिपेंडेंस कैसी थी।
नीड ऑफ लैंड रिफॉर्म्स क्या थी, रिफॉर्म्स इन प्री इंडिपेंडेंस टाइम्स क्या थे, जमींदारी एबोलिशन क्या थी, पहले खुद से ट्राई करना है इस पूरे पार्ट को याद करने की। वी हैव टू ट्राई बाय आवरसेल्व्स टू रिमेंबर दिस होल पार्ट फर्स्ट। अब जो जो याद नहीं आया उसके नोट्स खोल के पढ़ने हैं। मान लो मुझे बेनिफिट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स याद नहीं आए, तब मुझे खोल के देखने हैं। तो पूरी रिवीजन इस टाइप से करनी है थ्रू आउट द कोर्स। दिस इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। तभी हम आपको इंडेक्स बेस्ड नोट्स देते हैं ताकि आप यहां से एक्टिव रिकॉल करो, इससे हमेशा ज्यादा याद होगा। ऑलवेज यू रिमेंबर मोर इन दिस वे। पैसिव रीडिंग जो होती है ना, वो बहुत गलत तरीका है याद करने का। दिस इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर। अब आपको दो तीन चीजें दिखाता हूं, ये क्यों नोट्स दिखाए मैंने। और यार आप जहां तक जब आप बोलोगे कि नोट्स प्रिंटेबल है या नहीं, ऑफ कोर्स दे विल बी प्रिंटेबल। हमें क्या प्रॉब्लम है आपको देने में, आपको डाउनलोड करवाने में, देने में, आपके लिए ही बनाए हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? जो चीज आपके लिए बनाई गई है आपको हर फॉर्मेट में जैसे चाहिए वैसे मिल जाएगी। इन चीजों की बात नहीं करते, थोड़ी हायर लेवल चीजों की बात करते हैं कि इन नोट्स से क्वेश्चंस कितने आए, इन नोट्स को रिवाइज कैसे करना है। प्रिंट हो जाएंगे, डाउनलोड हो जाएंगे, ऑफ कोर्स हो जाएंगे यार, ऑपरेशनल चीजें हैं ये। ऑफ कोर्स, हमें क्या प्रॉब्लम? आप एक बार हमारे साइड से सोच के देखो, व्हाई वुड वी हैव एनी प्रॉब्लम इन गिविंग दीज नोट्स टू यू इफ दे आर मेड फॉर यू। एक दो चीजें दिखाता हूं। लैंड रिफॉर्म्स आपने देखा? अच्छा, ये देखो, challenges in water management, water governance, importance of water use efficiency, technological interventions, irrigation, ये देखा? ये एग्रीकल्चर के मैं दिखा रहा हूं आपको, माइक्रो इरिगेशन एक्सेट्रा। एक चीज और दिखाता हूं, ये देखो, मिलेट्स, बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स, कंस्ट्रेंट्स ऑन मिलेट कल्टीवेशन, इनिशिएटिव एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक और चीज दिखाता हूं, फूड सिक्योरिटी एंड पीडीएस, रिस्ट्रक्चरिंग एससीएस, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, फूड सिक्योरिटी एक्ट एक्सेट्रा। इसमें एक चीज थोड़ा खोल के दिखाता हूं। लेट मी शो यू फ्रॉम पेज नंबर, क्यों दिखा रहा हूं वो बताऊंगा। व्हाई एम आई शोइंग यू दिस, आई विल टेल यू। दीज आर notes of food security, what is PDS, what is food security, structure of this, warehouse receipts, transportation, distribution issues, etc etc। इसमें एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूं थोड़ी इंपॉर्टेंट, बफर स्टॉक्स। यहाँ पे देखो, इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। ये एग्रीकल्चर के नोट्स हैं। अब आपको एक चीज दिखाता हूं, ये मैंने आपको क्यों दिखाया। ये नोट्स कब के हैं? These notes were the ones that I taught for means this year, for means 2024। इस साल के means से पहले इन notes को मैंने पढ़ाया। This was my GS3 means module for means this year। आपने देखे अभी कुछ टॉपिक्स, इसमें कुछ समझ आया कि ये नोट्स इस साल के means से पहले पढ़ाए गए हैं। इस साल जो means का पेपर हुआ है उससे पहले पढ़ाए गए हैं। Is this clear? समझ आया मैंने आपको क्या दिखाया अभी? I have shown you my agriculture notes for this year's means, taught before this year's means। इस साल के means से पहले जो मैंने एग्रीकल्चर पढ़ाया वो मैंने आपको दिखाया है। ये यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये जीएस3 का पेपर है इस साल का। ये 2024 का जीएस3 का पेपर है, जिस पेपर के लिए मैं पढ़ा रहा था। इसमें आप कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं आपको। रीड दिस क्वेश्चन। पढ़ा था कि नहीं था नोट्स में? ये पढ़ लिए दोनों? देख लिए दोनों क्वेश्चन? रीड दिस क्वेश्चन। ये भी था नहीं था नोट्स में? Indian irrigation system in recent times, and then read this question। This is the confidence we will bring to you in the means। चार ही क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर के, चार ही क्वेश्चन आते हैं। आप पूरा पेपर देख लो, और कोई क्वेश्चन एग्रीकल्चर का नहीं है। बाकी क्वेश्चंस बाकी सब्जेक्ट्स के हैं, एग्रीकल्चर के चार ही हैं। दिस इज द क्वालिटी वी ब्रिंग, राइट? दिस इज व्हाट
यू आर गोइंग टू स्टडी। इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूं दैट यू डोंट नीड टू टेक टेंशन। ऐसे मैं आपको इंटरनल सिक्योरिटी के भी दिखा सकता हूं, 4 आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस आर फ्रॉम माय नोट्स, 4 आउट ऑफ 4 एग्जैक्ट हिट। दिस इज व्हाई वी आर कॉन्फिडेंट दैट व्हाट यू आर स्टडीइंग विद अस इज गुड इनफ। इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है। बस जो हम कह रहे हैं वो ढंग से कर लो। सैटरडे जैसे मैंने आपको बताया, सैटरडे को आपकी इवनिंग में क्लास होगी फॉर योर डाउट्स। दिस इज योर डाउट रेजोल्यूशन सेशन ऑन सैटरडे। संडे को आपका टेस्ट होगा ऑफ 25 एमसीक्यूज। आप उस एमसीक्यू का टेस्ट दो ऑन संडे एंड आप अपनी प्रैक्टिस करो। नाउ अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ऑप्शनल 2 क्वेश्चन है यहां पे। पहला है व्हेन टू सिलेक्ट, दूसरा है हाउ टू सिलेक्ट। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हेन टू सिलेक्ट एंड हाउ टू सिलेक्ट। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हेन टू सिलेक्ट, व्हेन टू सिलेक्ट ऑप्शनल। देखो बहुत टाइम से आपने भी शायद ये र्यूमर सुने हो इसके बारे में। बहुत टाइम पे यूपीएससी में ये डिस्कशन चल रही है दैट शायद ऑप्शनल हटेगा, विल इट गेट रिमूव्ड, है ना, विल इट गेट रिमूव्ड, ऑप्शनल हटेगा, क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस पे आपने डिस्कशन भी सुनी होगी, काफी बार इस बात पे बात हुई है कि ऑप्शनल को हटा देना चाहिए। बासवन कमेटी रिकमेंडेशंस भी हैं। देयर आर वेरियस डिस्कशंस ऑन दिस एंड आई एम श्योर यू वुड हैव हर्ड दीस र्यूमर्स। तो देखो सिंपल सी बात है कि हम इन र्यूमर्स पे नहीं जाते। वी विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ अस। जो हमारे सामने है उससे डिसाइड करते हैं। इफ यू वर टू टेक माई ओपिनियन, इफ यू वर टू टेक माई एडवाइस, मैं आपको कहूंगा अभी रुक जाओ। राइट नाउ इज नॉट द राइट टाइम, बिकॉज हमें पता नहीं कि क्या होने वाला है। यूपीएससी ने अगर ऑप्शनल हटाना होगा तो हमें अगर 2026 एग्जाम के लिए यूपीएससी ने ऑप्शनल हटाना होगा तो हमें नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में पता चल जाएगा। अभी अगर हम सिलेक्ट करके आज से ही ऑप्शनल पढ़ने लग जाए, एक तो ये रीजन है कि वी डोंट नो व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, ऑप्शनल सिलेक्ट करने में एक मेजर फैक्टर है इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, क्योंकि आपको वो सब्जेक्ट पूरे टाइम पढ़ना है। इट इज लाइक एन इंटरेस्ट, यू नीड टू हैव एन इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट, तभी आप पूरे टाइम पढ़ सकते हो। दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन यू विल मेक इन योर लाइफ अदर देन मैरिज, बिकॉज ऑप्शनल विल स्टे विद यू। जब तक आप इस साइकिल में हो ऑप्शनल आपके साथ रहेगा। नाउ टू डिसाइड कि मेरा किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और किसमें मैं अच्छे आंसर्स लिख सकता हूं, आई नीड टू नो मोर अबाउट द एग्जाम। अभी तो मुझे एग्जाम के बारे में बहुत कम पता है। आई नीड टू नो मोर, आई नीड टू नो इन मोर डिटेल अबाउट द एग्जाम टू टेक दिस डिसीजन। आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी कि मुझे थोड़ा और डिटेल में जानने की जरूरत है ये डिसीजन लेने के लिए। तो वी शुड वेट टिल वी हैव डन द 4 फाउंडेशन सब्जेक्ट्स। हम कोई लेट नहीं होंगे, आप टेंशन मत लो। जो हमारे 4 फाउंडेशन सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जब हम ये चारों फाउंडेशन सब्जेक्ट्स कर लेंगे, इकोनॉमी तो आप मेरे साथ ही करोगे, जब ये चारों फाउंडेशन सब्जेक्ट्स हम कर लेंगे, देन वी विल टेक दैट डिसीजन। बिकॉज एक तो ये चारों फाउंडेशन सब्जेक्ट्स अपने आप में भी ऑप्शनल है। हिस्ट्री इज ऑल्सो ऑप्शनल, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन इज ऑल्सो एन ऑप्शनल, ज्योग्राफी इज ऑल्सो एन ऑप्शनल, इकोनॉमी इज ऑल्सो एन ऑप्शनल। तो हो सकता है हमारा इनमें से किसी में इंटरेस्ट हो और हमें थोड़ा समझ आ जाएगा कि इस एग्जाम के लिए पढ़ाई होती कैसे है। देन आवर डिसीजन विल बी अ मच बेटर डिसीजन, अ मच इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो हम थोड़ा वेट करते हैं। इसीलिए अभी ऑप्शनल अगर नहीं सिलेक्ट किया है, कर लिया है, अभी लेट्स रिमूव ऑप्शनल फ्रॉम आवर डिस्कशन फॉर द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। मैं आपके साथ डिसाइड कराऊंगा आपको कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, आप उसकी टेंशन मत लो। आई विल बी हियर टू डिसाइड विद यू, बट नॉट नाउ। दिस इज नॉट द राइट टाइम, क्योंकि ना हमें अभी पढ़ना है ऑप्शनल, और ना ही हमें अभी डिटेल में जाना है। सो फॉर नाउ लेट्स जस्ट कीप इट असाइड। अभी के लिए इसको थोड़ा असाइड रखते हैं। वी विल टेक दिस डिसीजन एटलीस्ट 2-3 months later, when at least some subjects we have read। कुछ सब्जेक्ट्स हमने पढ़ लिए हो तब हम डिसाइड करेंगे। अभी एकदम से डिसाइड करने का कोई अभी लॉजिक नहीं है, ना हमें अभी पढ़ना है। मान लो मैं आज डिसाइड कर लूं इकोनॉमी मेरा ऑप्शनल है, मुझे अभी पढ़ना ही नहीं है इकोनॉमी, उसका भी टाइम आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा आपके शेड्यूल में कब आएगा, अभी नहीं। सो अभी 2-3 months लेट्स जस्ट कीप दिस असाइड।
डिसाइड मैं ही करवाऊंगा, उसकी मैं गारंटी देता हूं। ऑफ कोर्स डिसीजन आपको लेना है, मैं आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता हूं। आई विल ले आउट ऑल द फैक्टर्स एंड डेटा फॉर यू। जैसे मैंने आपको ये सीसैट और जनरल स्टडीज में कट ऑफ और ये वाला डेटा बताया, मैं आपको सारा डेटा लाके दे दूंगा। डिसीजन इज योर्स, डिसीजन इज योर्स। अब ऑप्शनल अभी हटा देते हैं। नाउ अभी तक मैंने बात करी है ऑफ व्हाट वी एक्सपेक्ट और व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, है ना। अभी तक हमने ये बात करी है कि हम आपको क्या क्लासेस देंगे, क्या लेक्चर्स देंगे, किस टाइप से कोर्स चलेगा, क्या प्लान रहेगा, टेस्ट कब होंगे, मेंस कब होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ अब बात करते हैं व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। देखो, this cannot work, this preparation or this endeavor to clear the exam cannot work if both of us don't work hard। दोनों को हार्ड वर्क करना है, और किस फॉर्म में करना है उसकी बात करते हैं। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, दैट यू शो ट्रस्ट इन अस एंड ट्रस्ट इन द प्रोसेस। देखो यार, अब देखो, किसी को भी कहना कि मुझे ट्रस्ट करो, इसके लिए एक तो तरीका है, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करूं कि आप मुझे ट्रस्ट करो, प्लीज ट्रस्ट कर लो, प्लीज ट्रस्ट कर लो। दूसरा है आई शो यू माई क्रेडेंशियल्स एंड आस्क यू टू डिसाइड। आई बिलीव इन द सेकेंड अप्रोच। I have shown you my credentials. I have shown you my teaching credentials. I have shown you my credentials with regards to what I have achieved before this, how much Sarthi IAS has achieved before this. Same logic I will say to you, that this is the most important thing. You need to have trust in the process and trust in us. Because देखो, हम आपको ट्रस्ट करवा नहीं सकते जब तक आप पढ़ना स्टार्ट नहीं करो। जब आप 1-2 महीने पढ़ लोगे कोर्स, आई एम श्योर ऑटोमेटिकली वैसे ही आप में ट्रस्ट आ जाएगा। बट फॉर दीज इनिशियल 2 months यू विल हैव टू बिलीव आवर पास्ट। जो हमारा पास्ट है वो देख के आपको हमें ट्रस्ट करना होगा। वंस यू स्टार्ट द कोर्स, आई एम श्योर दैट एवरी सिंगल वन ऑफ यू विल बिलीव दैट यू आर डूइंग द राइट प्रोसेस। आपको डिफरेंस दिखेगा इन योर ओन प्रिपरेशन एंड इन योर ओन जर्नी एज अ स्टूडेंट, देन ऑटोमेटिकली दैट ट्रस्ट विल डेवलप। बट हमारी ये एक्सपेक्टेशन है आपसे that even when you are starting out, you will show trust in this because of the credibility we have, the credentials we have, and the past that we have. On the basis of that, you will show trust in us. That is the first thing. If you will show trust in us and in the process, you will be committed to the process. अगर हमने सोचा है कि हम आज से 8 घंटे पढ़ेंगे, तो हम आज से 8 घंटे पढ़ेंगे। अगर हमने सोचा है हम क्लास लाइव अटेंड करेंगे, तो हम क्लास लाइव अटेंड करेंगे। वी विल बी कमिटेड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइव्स नाउ। जैसे हमारी रिलेशनशिप्स में कमिटमेंट होती है, सिमिलरली गिव योर कमिटमेंट टू द सिविल सर्विसेज एग्जाम एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1.5 years. Make this the most important thing in your life. And next, of course, if you have trust and you have shown commitment, you will obviously be disciplined. You will come on time, you will come to the class, you will make your notes the way you are supposed to, etc., etc. You will do your active recall, you will revise on time. These 3 things I expect from you. इसके beyond जितना काम है, देखो ये क्या है, ultimately these 3 things represent you studying well. आप अपनी मेहनत अच्छे से करो। इसके beyond जो भी काम है, गाइडेंस, मेंटरशिप, MCQs, आंसर राइटिंग, कंटेंट, लेक्चर्स, किस क्वालिटी का कंटेंट है वो भी मैं आपको दिखा चुका हूं, राइट। ऑल ऑफ दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आप मेरे पे छोड़ दो। यू जस्ट स्टडी प्रॉपरली एंड नथिंग विल बी लेफ्ट। कुछ बचेगा ही नहीं आपके लिए जहां आपको प्रॉब्लम होगी। दिस इज द आइडिया। बट यू विल हैव टू हैव दीज 3 थिंग्स। अगर यहां प्रॉब्लम हुई, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू ऑल्सो, फॉर अस ऑल्सो। ना हम आपका वैल्यू बढ़ा पाएंगे आपकी प्रिपरेशन में, और ना आपको मजा आएगा इस प्रोसेस में, राइट। दिस इज द आइडिया। नाउ नोट मेकिंग की बात करते हैं। नोट मेकिंग आपको नहीं करनी है। नोट मेकिंग इज नॉट टू बी डन बाय यू। व्हाई? बिकॉज ऑफ द नोट्स वी आर गिविंग यू, वो ऑलरेडी उसमें सब है जो मैंने आपको नोट्स दिखाए। द नोट्स दैट आई हैव shown you, I'll just load them again, right here they are. जब मैं आपको क्लास पढ़ाऊंगा वो इसी से ही होगा, और wherever I think handwritten things are required, I even put handwritten things in my notes, ताकि आपका टाइम बचे। माइंड मैप्स भी हैं इसमें, टेबल्स भी आपको मिल जाएंगे, आपको नोट मेकिंग करने की जरूरत नहीं है।
आपको इन नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है, दैट इज द जॉब, ये आपको आना चाहिए। तो जो हमारा टाइम जाता है, एक बार नोट्स बनाए, फिर एक और शॉर्ट नोट्स बनाए, फिर एक और शॉर्ट नोट्स बनाए, उसे उसमें नहीं जाना है, इनको ही अच्छे से रिवाइज करना है। और इन्हीं के लिए आई ऑल्सो गिव 1 पेजर्स, आई विल गिव यू 1 पेजर्स ऑल्सो, जो मैं आपको उस वीडियो में दिखा रहा था यूट्यूब पे, जहां मैं 1 पेजर से पढ़ा रहा था, वो 1 पेजर्स भी हैं फॉर समरी, ताकि वो प्रॉब्लम भी ना आए। दीज आर फॉर एग्जाम्पल 1 पेजर्स। अब ये 1 पेजर्स हैं, टेररिज्म का टॉपिक है, 1 पेजर्स हैं फॉर ऑल ऑफ दैट। ऑर्गेनाइज क्राइम का टॉपिक है, उसके 1 पेजर्स हैं। लिंकेजेस बिटवीन टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम है, उसके 1 पेजर्स हैं। शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको बना के दूंगा, माइंड मैप फॉर्म में 1 पेजर्स आर मेड। ठीक है, ये जैसे साइबर सिक्योरिटी है, ये इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है। द एंटायर आइडिया इज हियर। आपको सारा जो रिवाइज करना होगा उन्हीं नोट्स के शॉर्ट नोट्स, ये भी मैं ही आपको बना के दे रहा हूं, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गेट द आइडिया, ये नोट्स समझ आ रहे हैं आपको किस फॉर्म में है? आर यू अंडरस्टैंडिंग द आइडिया हियर? जैसे ये देखो, ये किस चीज के नोट्स हैं? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, वही मेंस के नोट्स हैं। मेरे मेंस के नोट्स में ब्रॉडली भी है और शॉर्ट फॉर्म भी है यहां पे। सेम फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, डोंट वरी। देखो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, हर टीचर का थोड़ा डिफरेंस है, बट शॉर्ट फॉर्म नोट्स देना और डिटेल नोट्स देना दोनों आपको दिए जाएंगे। द वे इन विच दे आर मेड, समवन might want to make them in handwritten manner, someone might want to make them in pointer manner, राइट? वो अपने टीचर का, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, देयर कैन नॉट बी वन अप्रोच फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। मेरे हिसाब से मेरे सब्जेक्ट्स के लिए अप्रोच बेस्ट है, बट प्रिंसिपल इज सेम, प्रिंसिपल इज सेम। एक और चीज देखोगे, एक और बढ़िया चीज दिखाऊं मैं आपको। ये भी वही नोट्स हैं, ये इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स हैं। डू यू वांट टू सी वन मोर गुड थिंग? देखना चाहते हो कुछ और बढ़िया सा? थके तो नहीं हो अभी? परेशान तो नहीं हो गए? ये देखो, ध्यान से पढ़ लो इसको। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, इसके बारे में पढ़ाया हुआ है यहाँ पे, वही मेंस के नोट्स हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में भी दिए थे कि अगर रिवाइज करने में कभी दिक्कत हो तो इशू नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन पढ़ना 10th वाला। दिस इज वाई वी आर कॉन्फिडेंट दैट व्हाट वी आर गिविंग यू इज वेरी गुड क्वालिटी मटेरियल। आप यही पढ़ लो बस। अब करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स पे भी कईयों के क्वेश्चन थे आपके। करंट अफेयर जो आपका नेक्स्ट मेंटरशिप सेशन है, नेक्स्ट मेंटरशिप सेशन इज विद वरुण सर, which is on 7 Jan at 12 p.m. 7 Jan मतलब on Tuesday at 12 p.m. इस दिन करंट अफेयर्स एंड मेंटरशिप, आपके मेंटरशिप ग्रुप्स कैसे होंगे, करंट अफेयर्स आप कैसे पढ़ोगे, वरुण सर विल बी लुकिंग एट इट इन डिटेल। जो बचे हुए फीचर्स हैं इस कोर्स के, वो सारे यहां देखे जाएंगे, है ना? मुझे पता है करंट अफेयर्स का डाउट था यार, बट आई जस्ट शोड यू पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट टू शो यू कि ऐसा नहीं है कि हम करंट अफेयर्स कवर नहीं करते। जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो एग्जाम में आ गया, वो भी हमने कवर किया हुआ था, राइट? नाउ उसके बाद नेक्स्ट डे आपका ओरिएंटेशन सेशन होगा विद कवल सर। कवल सर विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू डील विद हिस्ट्री। Varun sir will be talking about current affairs, mentorship, etc. Kawal sir will be talking about how to deal with the history subject. उसके बाद आपकी क्लासेस शुरू होंगी हिस्ट्री की। तो पहले आपको एक ब्रॉड प्लान बताया गया, फिर आपको मेंटरशिप, करंट अफेयर्स, थोड़ी बहुत चीजें जो बची हैं उसके बारे में बताया जाएगा, फिर आपको हिस्ट्री कैसे हैंडल करना है उसके बारे में बताया जाएगा, फिर आपको बताया जाएगा अल्टीमेटली कि आज से पढ़ना शुरू करते हैं, बिकॉज वी नीड टू नो आवर सब्जेक्ट फर्स्ट, वी नीड टू नो द एग्जाम फर्स्ट। पहले जाने तो सही हम एग्जाम को, उसके बाद हम एग्जाम को डील कर सकते हैं। दिस इज द अप्रोच, पहले हम जानेंगे आराम से। यू मस्ट हैव हर्ड दिस कोट, इफ आई हैव टू कट अ ट्री and 20 hours are allotted to me, I will spend 18 hours sharpening the axe. The job here is to sharpen the axe, not just hit it on the tree directly. We have to sharpen the axe as much as possible first. पहला काम हमारा शार्पन द एक्स करने का है, ताकि हमें पता तो हो, ताकि जब हम फाइनली एग्जाम को देने जाएं तो वी गिव आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। ठीक है,
इज द ब्रॉड प्रोसेस क्लियर टू यू? आपको समझ आया हम करने क्या वाले हैं? अगर मैं इतनी कॉन्फिडेंस से आपको ये सारी बात बता रहा हूं दैट यू कैन ट्रस्ट अस ब्लाइंडली, ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू कवर थिंग्स यार, हम कवर करने वाले हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कवर ना करें? ब्रॉड प्रोसेस शुड बी क्लियर, दैट वाज द पर्पस ऑफ टुडेज सेशन, कि आगे क्या करने वाले हैं। ऐसा ना हो कि आपने कोर्स लिया, हम क्लासेस स्टार्ट कर दें और आपको पता ही ना हो कि किस फिलॉसफी से क्या डिस्कशन हो रही है, राइट? व्हेन यू स्टार्ट वन सब्जेक्ट, व्हेन यू स्टार्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री के नोट्स को लेके आपके कोई क्वेश्चन होंगे कि मुझे नोट्स से ही पढ़ना है या मुझे और लिखना है? हाउ कैन दैट अप्रोच बी कॉन्फिडेंट? हाउ कैन वी बी कॉन्फिडेंट कि वो अप्रोच सेम होगी फॉर ऑल सब्जेक्ट्स? इकोनॉमी में भी नोट्स नहीं बनाने, हिस्ट्री में भी नहीं बनाने, मॉडर्न हिस्ट्री में भी नहीं बनाने, एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री में भी नहीं बनाने, इंटरनल सिक्योरिटी में भी नहीं बनाने। इज दैट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। हर सब्जेक्ट की एक डिफरेंट अप्रोच होती है, हर सब्जेक्ट को एक डिफरेंट तरीके से पढ़ा जाता है। देयरफॉर हिस्ट्री का एक सेशन अलग रखा गया है कबल सर के साथ, ताकि हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, दीज क्वेश्चंस यू राइट हियर, राइट? All right, so I will end this session here. I will end this session here, right? Next session, please do attend the next session with Varun sir, where we will discuss mentorship etc. एक क्वेश्चन रह गया था वर्किंग प्रोफेशनल वाला, वर्किंग प्रोफेशनल वाला क्वेश्चन मैं एड्रेस करता हूं। इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई विल एड्रेस, वर्किंग प्रोफेशनल और इन कॉलेज, ठीक है? इस क्वेश्चन को मैं जरूर एड्रेस करूंगा। आई विल एड्रेस दिस क्वेश्चन डेफिनेटली। नाउ एक बात डिस्कस करते हैं पहले, वेदर यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल और यू आर इन कॉलेज, ठीक है? आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या आप कॉलेज में हो, नाउ who took the decision to prepare alongside college or to prepare alongside job? ये डिसीजन किसने लिया? आपने लिया। अब ये डिसीजन अगर आपने लिया तो who is going to benefit from this decision? Who is going to benefit from this decision कि मैं कॉलेज के साथ साथ पढ़ाई कर रहा हूं तो मेरी पहले से पढ़ाई हो जाएगी, या फिर मैं जॉब के साथ साथ कर रहा हूं, मेरे पास एक सिक्योरिटी भी है कि मेरा एग्जाम नहीं भी हुआ तो आई हैव अ वेरी गुड जॉब, आई एम अर्निंग ऑल्सो। हु टुक दिस डिसीजन? यू। हु इज गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस डिसीजन? यू। अब अगर आपको इसका कोई बेनिफिट मिल रहा है तो इसकी कोई कॉस्ट भी है। देयर इज अ कॉस्ट ऑफ दिस डिसीजन दैट यू हैव लेस टाइम, यू आर गिविंग सम टाइम टू ईदर कॉलेज और टू योर वर्क, इसकी एक कॉस्ट है। If you are going to claim the benefit, if you are going to claim the advantage, if you are the one who has taken the benefit, you are the one who is going to pay the cost. आप ही उसकी कॉस्ट दोगे। तो पहले तो इस चीज को एक्सेप्ट करो, पहले तो इस चीज को एक्सेप्ट करो, है ना? नाउ मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या आप कॉलेज स्टूडेंट हो, do not shy away from watching the recordings, but please attend the doubt session live. सैटरडे को तो आप अवेलेबल होगे, तभी डाउट सेशन सैटरडे को रखा जाता है। डाउट सेशन यू नीड टू अटेंड लाइव, डाउट सेशन यू नीड टू अटेंड लाइव, राइट? डाउट सेशन आपको लाइव अटेंड करना चाहिए ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो आप यहां पे करो। अदरवाइज यू कैन फोकस ऑन द रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो, यू कैन फोकस ऑन द रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो, राइट? आपको टाइम मिले तो आप लाइव देखो, ये पहली चीज है। दूसरी चीज मैं कहूंगा, ट्राई एंड फिनिश हाफ ऑफ योर स्टडी ऑफ एवरी डे। जो आपका दिन का स्टडी का शेड्यूल है उसका हाफ ऑफ द टाइम प्लीज डू इट बिफोर यू गो टू वर्क और कॉलेज। उसके लिए आपको जल्दी उठना पड़ेगा, उसके लिए आपको सुबह उठना पड़ेगा, जल्दी सोना पड़ेगा, राइट? बट देयर इज एन एडवांटेज ऑफ प्रिपेयरिंग विद कॉलेज एंड वर्क, वो एडवांटेज तो आपको चाहिए। तो अगर उसकी कोई कॉस्ट है तो कॉस्ट भी आपको ही बेयर करनी है। यू आर द वन हु हैज टू बेयर द कॉस्ट, आपको ही बेयर करनी है कॉस्ट, बिकॉज जो एडवांटेज है वो आप ले रहे हो तो कॉस्ट भी आप लो। दिस इज द जॉब, दिस इज द आइडिया, ठीक है? चलिए, आई विल एंड दिस सेशन हियर नाउ। आई होप यू लर्न समथिंग टुडे। I hope this was your first session at Sarthi IAS. I hope you enjoyed it. I hope आपने कुछ सीखा. I really enjoyed the session. Right? I hope you understood the approach to this exam. And हमने आज start किया है, हमने आज खत्म नहीं किया है. We have just started. I hope you are feeling confident.
अब नेक्स्ट सेशन आपका वरुण सर के साथ होगा, एंड आई एम विद यू इन दिस जर्नी फॉर द नेक्स्ट 1.5 years. ठीक है, ऑल द बेस्ट.